प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों का है नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। सो प्रदीप जी, देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि राहुल गांधी जी वोट चोरी बात कर रहे हैं, शायद उनका दिमाग चोरी कर लिया। यस सर, वोट चोरी हुआ नहीं, दिमाग का चोरी हुआ है, वो भी दिमाग की चोरी हुआ है, वो भी राहुल गांधी की। ऐसा उन्होंने कहा है। और उसके अलावा जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी इज नॉट रिएक्टेड एट ऑल with regard to Mr. Trump. But of course, the news is that for the last 6 months, we've not had a U.S. ambassador. 6 months? Yeah, 7 months actually. Yes, because in a long time. January, Garcetti's term finished in January this year. So Sergei Gore has been appointed U.S. ambassador to New Delhi, and he's supposed to be Trump's right-hand man. बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तरफ से ट्रम्प साहब जो हैं वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से बोलते मैं पेनल्टी लगा रहा हूँ, तीसरी तरफ से बोलते हैं कि मैं सैंक्शन लगा रहा हूँ, और फिर अपने राइट हैंड को, द मोस्ट ट्रस्टेड मैन इन द ट्रम्प सर्कल, उसको भारत के लिए एम्बेसडर बना करके भेज रहे हैं। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। प्राइम मिनिस्टर मोदी आर्यभट्ट से गगनयान नेक्स्ट नेशनल स्पेस डे आज मनाया और कहा कि 2035 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। We are having a space station 2035 and 2040 will have a manned lunar space visit. Isn't that wonderful? Wonderful. Timelines decide कर दिया है, and when targets are set, probably it might be achieved. If you don't have a target, if you don't have a timeline, nothing is achieved. At least he's talking about these things. At the same time, Agni 5 का launch कर दिया है. Agni 5 has been tested 5,000 kilometers, and that has got Pakistan extremely worried. Why would the Pakistanis arms race जिस प्रकार से India in the subcontinent कर रहा है? No, but I don't understand. Why would the Pakistanis be worried? Because they are just 300 kilometers wide on one side. I mean, our BrahMos missile and our Agni teams can reach and destroy the whole of Pakistan. This is a message across to all the others, including China, including the USA. That hey, listen, we have just tested an ICBM. They are of course calling it an IRBM, an intermediate range ballistic missile. Actually, it's almost within ICBM range. It's 5,000 kilometers, which means you can hit New York. Come to think of it. So all I'm saying is, but actually it's a technology demonstrator in the sense that जो गगनयान की तैयारी हो रही है ना, गगनयान is where we'll have our first manned space flight. अभी तक क्या है, हिंदुस्तान ने जितने भी अंतरिक्ष में अपने इदारे भेजे हैं वो सारे के सारे वो क्या हैं, वो they're all unmanned. Now once you start sending astronauts, now that will be the real test of our technological expertise. And I think Mr. Shukla, who was there in the space, he said all the other countries जो उनके साथ colleagues थे, they are very interested in what Prime Minister Modi is doing. They said जब भी मोदी जी का the space station जो भी करने का विचार है, हम लोग का जरा याद कीजिए. They took it in writing from him. That is it. You are going to call us, and rightly so. He has been appointed by Prime Minister Modi. That's right. He has been appointed to take care of all the space ventures. So but that's fantastic. That is really and truly fantastic. And the most important thing is what the other astronauts think about Prime Minister Modi and India. They believe it can happen, and they said if it happens, please include us in that. And that's. और प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है ये कि अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद, ट्रम्प साहब के थोड़े से अजीबोगरीब बिहेवियर के बावजूद, नासा जो नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, दे बिलीव इन इसरो. वो कहते हैं भाई इसरो जैसा कोई है ही नहीं अभी. And they, by the way, are using our PSLV and GSLV, our launch satellites, our launch vehicles, that is our rockets, to launch their satellites. So, what's going on over here? I really don't know. So, no wonder the Chinese are very confused. कि हो क्या रहा है? कि मतलब एक तरफ ये बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये भारत की तरफ हाथ भी बढ़ा रहा है. मतलब हो क्या रहा है? वो what is going on? और French engines, French companies के साथ engines tie up कर दिया, made in India engines. And fifth generation engines, made in India. But perhaps I think what Mr. Trump wants really is, Trump is like actually a girl, you know, like all girls want. Sorry for saying this. I don't want to sound misogynistic, but all the same, he's like a girlfriend. He wants to be praised. So maybe he's just waiting for Mr. Modi to turn around and say, hey, listen, you really and truly helped us in the India-Pakistan war. Had it not been for you, we would have been in trouble. Thank you very much, Mr. Trump. And let me tell you, Trump will remove all tariffs. Just one little line.
from Mr. Modi, and that will be it. कौन सा प्रेसिडेंट अगर राष्ट्रपति ईगोस पर अपना देश चलाता हो, इंडिविजुअल ईगोस पर, he doesn't deserve to be a president for a moment. You're the president of a nation. That, by the way, आपने घर के या कंपनी के ये president नहीं हो. And thank you very much, guys. That was Sergey Gord. We just showed him to you. He's our next ambassador. He's very young man. He's in his he's 37 years old or 38 years old. Very young man. We'll of course talk a little bit more about that. But at the moment, we have a wonderful panel with us. Let's go straight across to them. Can we go across? Yeah, there we go. Pooja Mishra ji, namaskar. Pooja Mishra ji, namaskar. Aviral Malik Saab, namaskar. How are you, sir? नमस्कार. Pooja Mishra ji, I couldn't hear your voice. Could you unmute yourself, please? अनम्यूट किया हुआ है, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? अभी आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है। थैंक यू वेरी मच। जी, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर अविरल मलिक साहब, आपको भी नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। वंडरफुल। और आज जो शनि अमावस्या है, मुझे मालूम नहीं शनि अमावस्या की मुबारकबाद दी जाती है कि नहीं दी जाती, मुझे मालूम नहीं। जी, शनि अमावस्या। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि दी जाती है कि नहीं जाती। That I don't know. But all the same दी जाती है, सेलिब्रेट करते हैं उत्तर प्रदेश में। शनि अमावस्या स्वीट बनाते हैं। शनि अमावस्या का बहुत अभिनंदन आप सब लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 12 बजे के बाद निश्चित काल शुरू होगा। सुबह 4 बजे तक है। आप मंत्र तंत्र षड्यंत्र सब करेंगे। आई होप शनि महाराज की दृष्टि जो है किसी और पे पड़े, हम पे ना पड़े। बहुत अच्छा है। ये कहा जाता है शनि महाराज जहाँ बैठते हैं बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे सत्यानाश कर देते हैं, ये कहा जाता है। इन एनी इवेंट, पूजा मिश्रा जी आप ये बताएं कि जहाँ तक कि यूपी का सवाल है, अखिलेश यादव जी का सवाल है। अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि ये क्या है कि बार मुझसे एफिडेविट की वेरिफिकेशन मांग रही है इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? भाई 18,000 के करीब एफिडेविट जा चुके हैं और अभी तक वहां से जवाब नहीं आया। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? पूजा मिश्रा जी बताएं प्लीज। राजीव जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहली बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झूठ बोल दिया कि हमें एफिडेविट नहीं मिले हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने रायता फैला दिया देखा जाए तो, क्योंकि उनका ये बात ध्यान इस चीज पर ध्यान नहीं गया कि हमने अगर एफिडेविट दिए हैं तो उसके रिसीविंग भी रखे होंगे। पॉलिटिकल पार्टी है और हमें जानकारी है, पॉलिटिकल पार्टी एक कॉमन प्रवृत्ति होती है। अगर किसी से जो है बहुत सिग्निफिकेंट चीज के लिए आप कुछ करते हैं तो उसकी रिसीविंग रखते हैं, उसकी कॉपी रखते हैं। हम लोग तो इवन अब कॉलेज में भी एक एप्लीकेशन लगाने जाते हैं तो कहा जाता है बच्चे से कि जो एप्लीकेशन आप रख रहे हैं उसकी कॉपी लगा करके रिसीविंग ले लेना कि आपकी लेटर रिसीव किसने किया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ये स्किप कर गई उसके माइंड से कि हमारे पास में रिसीविंग होगी। अब हमने रिसीविंग भी दिखा दी हुई है। अब उनको लग रहा है कि हम इस चीज का जवाब दे तो दे कैसे। और ये सही बात है कि 18,000 आज नहीं, अक्टूबर 2022 में ये सारे के सारे एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दिए गए हुए थे। उनमें से एक भी एफिडेविट का या एक भी कंप्लेंट का जवाब नहीं आया। जवाब अगर कोई दे भी रहा है तो उत्तर प्रदेश के डीएम दे रहे हैं। वो भी कितने के दे रहे हैं? मुझे लगता है कि 48 या 58 वोटर्स के जो है वो जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं कि इनके नाम क्यों काटे गए, उनके नाम क्यों काटे गए। अगर हम 48 58 छोड़िए, हम हटा देते हैं, 100 भी हटा दे, हम 1000 हटा दे, फिर भी जो है 17,000 तो बचते हैं ना। ये कम आंकड़े थोड़े ना है। फिर भी ये जो है डीएम जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके में काम कर रहे हैं कि हमें वो काम करना है जो सरकार को खुश करे, जो सरकार को पसंद आ रहा हो। राजीव जी, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम नहीं कर रहा है और इसीलिए प्रश्न उठ रहे हैं। और जिसकी जरूरत होती है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास रहे, और अगर उसकी विश्वसनीयता पे इतना प्रश्न उठ रहा है और वो आकर के सिर्फ एक बिना किसी सबूत के किसी भी चीज के आकर के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं और निराधार बात कर ले जा रहे हैं और झूठ बोल दे रहे हैं, तो ये भारत देश के लिए बहुत ही मैं कहूंगी गंदा दौर है, गंदा दौर चल रहा है राजनीति का और इलेक्शन का। This is a very important question. I really would like to know. I know the answer to that already. जिसका जो निजाम साहब नमस्कार सर। अरे मुकेश गांधी साहब, आफ्टर लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। आप सब लोगों को एक बार फिर शनि अमावस्या की बहुत अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ शनि महाराज जो है सबके साथ इंसाफ करें जैसा कि वो करते हैं। लेकिन पूजा मिश्रा जी ये बताएं कि दिस इज आई नो द आंसर टू द क्वेश्चन बट आई वुड लाइक यू टू से इट फॉर्मली ओवर हियर। 18,000 जो आपने एफिडेविट फाइल किए उनमें से एक का भी जवाब आया आपको या नहीं आया? नहीं आया।
दिस इज अ फॉर्मल आंसर ऑफ द समाजवादी पार्टी कि इलेक्शन कमीशन ने 18,000 कंप्लेंट्स जो गई 18,000 2022 से लेकर के आज तक एक का भी जवाब नहीं आया। 14 पूजा मिश्रा जी 14 का इलेक्शन कमीशन ने शायद दे दिया है रिप्लाई। आपने बोला 14 भी टोटल हियर ना देर ना इधर ना उधर उस प्रकार से जवाब दिया। 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट किया है आपके 18,000 एफिडेविट्स का क्लैरिफिकेशन देने के लिए। 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही 14 में वही क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, उसको जवाब नहीं काउंट करेंगे आप। वो जो क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है उसको जवाब आप नहीं काउंट कर सकते। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब फॉर्मल नहीं आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हमको जवाब चाहिए भी नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेरिफिकेशन करके इलेक्शन कमीशन को दे, इलेक्शन कमीशन हमें वो फॉर्मल जवाब दे। ये कौन सी बात होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम थोड़े ना है कि वोटर लिस्ट को वेरीफाई करके वोटर लिस्ट का जवाब हमें देंगे। वो जो जवाब देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन दे। और इलेक्शन कमीशन को ही हमने एफिडेविट दिया था, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एफिडेविट तो दिया नहीं था। हमने बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये कहा था प्रदीप जी कि वोटर लिस्ट आपको चेक करने का अधिकार नहीं है। आपका अधिकार नहीं बनता कि आप बुर्के हटा करके देखें, आपका अधिकार नहीं बनता कि आप घूंघट देखें, आपका अधिकार नहीं बनता कि आप वोटर लिस्ट देखें। आपका अधिकार बनता है कि जो लाइन में लगे लोग हैं वो उत्पात ना करें, सुचारू ढंग से वोट पड़े। वोट वो वोटर है कि नहीं है, इसका अधिकार पीठासीन को है, इसका अधिकार इलेक्शन कमीशन को है, डीएम को, पुलिस को नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अगर उनको अपॉइंट किया हुआ है, अपॉइंट किए रहे, अपना जांच करें। जांच करने के बाद में समाजवादी पार्टी को जब वो फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देंगे तो मान लिया जाएगा। वरना डीएम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये 4 हमने ऐसे किया, 48 हमने ऐसे किया, उसको समाजवादी पार्टी नहीं काउंट कर रही होती है कि कोई जवाब दिया गया है। पहली बार पूजा मिश्रा जी हम लोग सुन रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब दे रहे हैं। It has never happened properly. Never happened. Never. किसी भी how can a district? ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई जवाब नहीं दिया हुआ है फॉर्मल। वो आप डिसाइड करते हैं। No, but Sir, that is the rule, sir. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। That is decided by Constitution. In the Constitution, Yes, the only election commission can reply. District magistrate cannot reply to any query given to the election commission. बीजेपी है तो कुछ भी संभव है। District magistrate can only send a reply or information, not even a reply. He or she can only send information to the election commission. Election commission has to formally reply to the political party concerned. That is the law, sir. Here, law is being violated. Now I am not sure about this, if the district magistrate is being asked to reply on behalf of the election commission. पूजा मिश्रा जी, क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा जा रहा है रिप्लाई करने के लिए चुनाव आयोग के बिहाफ पर? इज दैट व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज़ आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस। प्लीज मैम। नहीं, ये पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब दे क्यों रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जवाब देते फिर पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको हायर किया। जब समाजवादी पार्टी कहती है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है और रिप्लाई हमारे मजिस्ट्रेट क्यों दे रहे हैं। मैंने आपकी पिछली डिबेट में कहा था कि हम डीएम कह रहे हैं कि नियम के तहत नाम काटा गया हुआ है। मैंने आपकी पिछली डिबेट में कहा था और उससे हमें ऑब्जेक्शन हो रहा था कि डीएम होते कौन है, किस नियम के तहत काटा गया हुआ, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। उसके बाद में कहा जाता है कि नहीं, डीएम को अपॉइंट किया गया। हम कहते हैं आप डीएम को अपॉइंट करिए, आप किसको अपॉइंट करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है, हमने एफिडेविट दिया हुआ है, जैसे हमने आपको ऑफिशियली एफिडेविट दिया है, रिसीविंग दी मिली हमारे पास में, वैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए लोगों के तरीके से कि इन कारणों से 18,000 लोगों के नाम काटे गए हुए, फिर हम उसको रेक्टिफाई करें ना। मुकेश गांधी साहब, आप किसी और शो में बात कर रहे हैं क्या? सर इधर देखिए, इधर अरे इधर देखो सर, इधर देखो। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। I think that's a new jacket, right? That's a new jacket, and he's just come from a spa. 100%. He's got a facial massage. He's had a new haircut. Wow, sir, looking really good. क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन है कि नहीं कि डीएम को अपॉइंट करना, ये विचार है? भैया राजीव जी, आज मैं सुबह शनि महाराज का हनुमान जी का दर्शन करके आया। ठीक है सर, दिख रहा है, शक्ल में दिख रहा है। रवि पुत्रम छाया गजम छाया मार्तंडम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शनिश्चराय नमः। थैंक यू सर। पूजा मिश्रा जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन है कि नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिप्लाई कर रहा है? वी वांट टू नो, क्या डिसमेंटल किया स्टेट इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश में मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि हमने बचपन में कहानी सुनी हुई थी कि अंधेर नगरी अनबूझ राजा, मॉडिफाई कर दिया गया। जब हम बचपन में थे तो अलग अनपढ़ शब्द था, पर उसके बाद एनसीईआरटी ने उसको मॉडिफाई किया कि अनपढ़ अच्छा नहीं लगता है।
अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। चौपट राजा तो बोलते उत्तर थे। प्रदेश को अगर कोई चरितार्थ करता हुआ दिख रहा है ना, तो वो यही दिख रहा But है। is the state ग्राउंड election commission की there or समस्याएं not? कुछ अलग चल रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठ करके सदन में से लेते हुए और मंचों पे जा करके कुछ और कह रहे हैं। Right, ये so let me चल go रहा है across उत्तर to प्रदेश Dr. में। Malik. आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कहाँ गया हुआ है। मुझे लगता है ये तो आप लोग भी एक ऑफिशियली लेटर लिख सकते हैं We will. कि उत्तर प्रदेश का We will. इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। No, I really would डीएम like to कब से know जवाब देने लग गए। what is the state chief election commissioner doing? Because I remember every state election commission over here in Maharashtra के जितने भी CEC हुए हैं यहाँ पे, they used to be very 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 active. मतलब वो अगर सेंटर से कोई आ जाता था, they used to feel very hurt कि how can you interfere in our rights? मुझे अभी तक याद है। Let me go across to Dr. Aviral Malik. Aviral Malik साहब, ये क्या चल रहा है सर कि डीएम जवाब थोड़ी दे सकते हैं सर इलेक्शन कमीशन का। हाउ कैन द डीएम गिव अ रिप्लाई? और दूसरी चीज, अभी अभी आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े अच्छे मित्र देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये कहा है कि वोट चोरी नहीं हुई है, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आप बोले सर प्लीज, अविरल मलिक साहब। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय राहुल गांधी जी का है, दिमाग चोरी होने का विषय है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है कि किसान के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे तो बात करेंगे नहीं, ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये भूल चुके हैं, अपने 60 साल के जो इनके कार्य उपलब्धियां हैं वो नहीं बताना चाहते, मुद्दे की बात, मुद्दे की राजनीति असल में नहीं करना चाहते हैं, मुद्दा आधारित राजनीति करें तो मैं समझता हूँ अच्छा परिवर्तन देश की राजनीति में आए। लेकिन ये नहीं चाहते हैं। ये चुनाव 2014 से किस पे लड़ रहे हैं? ईवीएम पे लड़ रहे हैं। अब जब ईवीएम इनका मुद्दा खत्म हो गया, अभी एसआईआर का मुद्दा, जो वोट एक तरीके से वोटर लिस्ट को अपग्रेड करने का जो विषय है, ये उसे ही चुनावी मुद्दा बना लेते हैं, ये उसी पे ही पूरा चुनाव लड़ देंगे। किसी डिबेट में मैं किससे पूछ रहा था कि आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, तो इंडिया अलायंस का प्रवक्ता कह रहा है कि एसआईआर का मुद्दा रहेगा। ये एसआईआर के मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार का। ये एकदम शॉकिंग है, अजीबोगरीब इनकी एक तरीके से मेंटालिटी हो चुकी है। विकास के मुद्दे पे इन्हें चर्चा ही नहीं करनी। पूरा चुनाव जो 5 साल के लिए होता है, जिसमें जनता वोट कास्ट करती है, उसे किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? स्टीलिंग इंडियन राइट्स, एक अपनी परिभाषा गढ़ के, और वोटर लिस्ट जो अपग्रेड हो रही है, जिसमें किसी का अगर निधन हो जाता है, उसका नाम काटा जाता है, कोई त्रुटि होती है उसको सही किया जाता है, 18 साल का कोई हो गया उसका नाम एक तरीके जुड़ा जा रहा है। ये उस मुद्दे पे ही पूरा विधानसभा चुनाव लड़ दे रहे हैं। मैं समझता हूं इनकी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से डगमगाई हुई है विपक्ष की, जो कि बहुत ही दुखद है, शर्मनाक और निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा आधारित राजनीति कर रही है। राहुल गांधी को इस विषय को समझना चाहिए। और जहां तक विषय वोट चोरी का है, वोट चोरी किस प्रकार की आखिर ये बात कर रहे हैं? अगर वोटर लिस्ट अपग्रेड हो रही है, वो अपडेट हो रही है, तो उसमें वोट चोरी कहां से हो जा रहे हैं? और उसके साथ साथ ये ईवीएम की बात करते हैं। लेकिन 2014 से पहले जब इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, उस समय ना तो वोट चोरी हो रहा था, ना उस समय ईवीएम खराब हो रहा था, ना उस समय इलेक्शन कमीशन खराब हो रहा था, ना उस समय ईडी खराब हो रही थी, ना उस समय सीबीआई खराब हो रही थी, ना उस समय आईबी खराब हो रही थी। अब ये हर विषय पे आरोप लगा देंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, कोई भी मामला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला हो, किसी भी मामले पे कुछ भी करा के इन्हें एजेंसियों पर आरोप लगा देना है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देना है। डॉक्टर मलिक, अखिलेश यादव जी ने क्लियर कट कहा कि पीडीएस समाज का वोट काट दिया गया, पीडीएस समाज का वोट काट दिया गया। कुर्मी, पाल, बेलवंशी, जितने ऐसे समाज के लोग हैं पीडीए के, उनके सबका वोट जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मिलने वाला था, वो आपने काट दिया। और अभी यह हाल आलम है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिप्लाई दे रहा है जब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूछ रहे। तो यह क्या नया चीज है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिप्लाई दे? अविरल जी, डॉक्टर मलिक। नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए इन्हें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहने में क्या पीड़ा होती है? इसकी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म निकाल दी। अब इन्हें पीड़ा है क्या भाई? पूरा बोलिए, अगर आपको बोलना है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप बोलिए ना, क्यों नहीं आखिर बोलना चाहते हैं? नंबर 2, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए क्या किया इन्होंने? इन्हें मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए और बताना चाहिए रिपोर्ट कार्ड के आधार पे। पूजा मिश्रा जी एक पुरानी कहावत बता रही थी, मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले अंधेर नगरी, चौपट राजा था, वो सब दिख रहा था, किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी दिख रही थी, हर जिले में ये दिख रहा था। जिले के एसपी काम नहीं कर रहे थे, डीएम काम नहीं कर रहे थे, एक पार्टी की सुनी जा रही थी, दूसरी पार्टी की नहीं सुनी जा रही थी। और उसके साथ साथ अगर आज उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, सब अधिकारी निश्चित रूप से सुनते हैं, जन सुनवाई बढ़िया हो रही है और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हित में निरंतर फैसले हो रहे हैं, दलितों के लिए सरकार चल रही है।
और उसके साथ साथ राजीव जी, आपने जो है AK शर्मा ऊर्जा मंत्री है, उनकी जो है वीडियो देखी थी? जी देखिए देखिए उसके ऊपर बिल्कुल। बिल्कुल, और बिल्कुल, पूजा बिल्कुल, शुक्ला बिल्कुल है देखी जो है महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री है, उनकी देखी थी? उसके 36 ऊपर घंटे आते हैं धरने पे बैठी मैम, थी। उसके ऊपर आते हैं आपके पास वापस आशीष आते हैं। पटेल है, राज्य मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आपने? उसके ऊपर आते हैं ना वापस में। डॉक्टर मलिक आप जो- नहीं देखिए, हमने डॉक्टर बहुत मलिक कुछ को सुना है, पीडीएम, हमारे परम आदरणीय, डिस्ट्रिक्ट अब मजिस्ट्रेट। हमारा तो घर जैसा संबंध है, और उसके साथ साथ अगर शिवपाल सिंह यादव जी की चाचा जी की बात कर ली जाए तो चाचा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमने बहुत सुनी है, और आदरणीय शिवपाल यादव जी के बहुत बयान सुने हैं, बहुत कुछ हमने सुना है। उस मुद्दे पे हम नहीं जाना चाहते, वो ठीक है, एक अलग विषय है, लेकिन मैं समझता हूं मुद्दा आधारित राजनीति होनी चाहिए। और जहां तक विषय AK शर्मा जी का, एक पर्टिकुलर वीडियो की पूजा जी बात करेंगी, पूजा जी अच्छी प्रवक्ता है, काबिल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। सर फ्यूचर सीएम है सर, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश की। अब ये समाजवादी से बनेंगी या बीजेपी से बनेंगी मुझे मालूम नहीं है, दोनों में एक जगह से तो बनेंगी। प्रश्न का ये जवाब पक्का है। दिया ने आप बोलिए ये सर। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या जो उनके एफिडेविट्स का जवाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा? 3 अपॉइंट किया गया डॉक्टर मलिक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। पहले AK शर्मा जी की बात कर लेता हूं। इन्होंने जो नाम लिया मैं हर एक का जवाब दे रहा हूं साइड बाय साइड। AK शर्मा जी की इन्होंने बात की, तो AK शर्मा जी की एक वीडियो का जिक्र करेंगे जिसमें वो जय श्री राम का नारा लगा दिया। अब देखिए, जय श्री राम का नारा गाड़ी में बैठते समय समस्या सुनने के बाद जनता की, अरे अगर नहीं, ऊर्जा वो मंत्री नहीं जिसमें वो कह रहे थे कि जो है अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, मेरी औकात नहीं कि मैं JEE का ट्रांसफर करा सकूं, मैं प्राइवेटाइजेशन को कैसे रोकूं, उसकी बात कर रही हूं मैं। अरे जय श्री राम से बाहर भी आइए भाई साहब, जी 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 जय श्री राम से बाहर भी जहाँ पे आइए। आपके मंत्री कह रहे थे मैं मेरी औकात ही नहीं मैं JEE का ट्रांसफर कर सकूं। वो जब सोचिए, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री अधिकारियों से कह रहे थे कि तुम्हारा जो भी आका होगा मैं कोई बचा नहीं पाएगा तुमको। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के जो राज्य मंत्री हैं उनसे बड़ा कौन सा आका हो गया कि ऊर्जा विभाग से रिलेटेड जो अधिकारी हैं उनको कोई और बचाने चला आ रहा है? समझ में नहीं आ रहे हैं, नौटंकी फैला रखे हैं 27 में, क्योंकि इनके पास में मुद्दे नहीं है। नहीं नहीं, देखिए जहां तक विषय मुद्दे की, तो केवल मेरा इतना मानना है कि किसान की बात की जाए, मुद्दे की बात की जाए, हाँ, फसलों की जिनको बात की आप जाए, लाठी से जो मार रहे भारतीय हैं, जनता पार्टी करती है, चाहे वो हम लखीमपुर भारतीय जनता खीरी हो, पार्टी चाहे वो के अयोध्या गरीब हो, चाहे किसान से गोंडा बंधे हुए हो, लोग। चाहे वो आजमगढ़ हो, उनको जो यूरिया दे देखिए, दीजिए, हम बहुत गांव परेशान गरीब है। किसान की बात करने वाले खरीफ लोग की हैं, खेती के लिए बहुत किसान परेशान है। भाइयों के हितों मुख्यमंत्री फैसले तो लेने कह रहे वाले हैं लोग कि हैं। किसान और जो देखिए, है उत्तर स्टॉक कर प्रदेश रहा में है क्या है यूरिया। ना, राजीव जी आपको अगर पता उत्तर है, प्रदेश में चुनाव हमारे एटा, मुख्यमंत्री इटावा, कह रहे हैं मैनपुरी, किसान बलिया, स्टॉक आजमगढ़, करना यूरिया बंद मैनपुरी, कर जितना दे, की इन्होंने उनको बात एक बोरी कही। नहीं मिल रही अब है, अगर और इन ये जिलों कहा जा में रहा ये है उन मुख्यमंत्री मुद्दों की की तरफ बात से। करेंगे, मतलब मैं समझता हूँ कालाबाजारी पे वोट नहीं हम हाथ मिलेगी। नहीं लगाएंगे, उनको नहीं देखेंगे, वो नहीं, चलता देखिए, रहे, देखिए, हमारे ये किसान शिक्षण है, स्टॉक ये कर रहे पूजा हैं। मिश्रा जी उनको जरा बोलने दें गलत please। रिपोर्ट है देखिए, आपकी। अच्छी उनको बात है, बोलने चर्चा बोलिए। होनी चाहिए, नहीं चर्चा होनी चाहिए, हम तो स्वागत करते हैं। जी। लेकिन एटा, इटावा, मैनपुरी, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर, मछली शहर, उस क्षेत्र की अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इन क्षेत्रों में मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, मुद्दे के आधार पे, किसान के आधार, देखिए जहां जिसकी जनसंख्या, आप उसी की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान है, किसान की अपनी समस्या रहती है, और उस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, लेकिन ये उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उससे लेना देना नहीं है। ये वोटर क्या लिस्ट, बात वोटर कर लिस्ट, रहे हैं? वोटर लिस्ट चिल्ला रहे हैं। ये लेकिन गांव में डॉक्टर जाएंगे, मलिक, वोटर लिस्ट, वोट चोरी, EVM, इस प्रकार के मुद्दे रख रहे हैं। डॉक्टर मलिक, भैया, अगर आप किसान की बात करें- मैनपुरी में आप क्या राजीव EVM जी, चिल्ला रहे हैं जाके? मुख्यमंत्री हमारे कह रहे हैं कि किसानों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो यूरिया स्टॉक ना करें। मतलब कह रहे हैं कि यूरिया वो लोग ले जा रहे हैं किसान और रख दे रहे हैं। कोई एक वीडियो सरकार ने देखो, जारी किसी किया ने- जहां पे ये किसी ने दिख रहा है कि गलत- कोई एक किसान जो है, जहां से यूरिया, जो किसान बना हुआ है केंद्र, वहां से यूरिया उठाता हुआ दिखा हो। मैम, वो- लाठियों वाले आपके वीडियो खूब दिखे मैम, होंगे, लेकिन यूरिया मिलने वाला नहीं दिखा होगा। वो गलत- अरे कह रहे गलत- किसान गलत- की आपके बात बीच नहीं में नहीं चल बोला रही था है। ऐसा। वो चीफ मिनिस्टर देखिए, को ऐसा गलत सही नहीं ट्रीटमेंट रहता, दी मैं गई। आपके बीच में नहीं बोला था जी। आपको हमने पूरा सुना, अब हमें भी सुन लीजिए, हमारा अपने विचार है, विचार रखने का लोकतंत्र में आप अधिकार बजते है। हैं, करे क्या हम? जी बोलिए बोलिए डॉक्टर मलिक। नहीं नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबका विचार रखने का अधिकार है, तो विचार अगर सुने लेकिन जाए डॉक्टर आपस में, मलिक तो आप यही भी है, बागपत से हैं, लोकतंत्र की सर खूबसूरती सर है। आप बागपत से हैं। सर बागपत में बहुत तकलीफ हो रही है अभी, आपको मालूम है ना? वो गन्ने के जो किसान हैं वो बहुत बहुत तकलीफ में सर। वो अभी उनको नहीं मिल रहा है फर्टिलाइजर वगैरह, कुछ नहीं मिल रहा है उनको, कीड़ा लग गया है बहुत 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 बड़ी क्रॉप में। आई एम नॉट जोकिंग, वी जस्ट गॉट अ कॉल। बागपत में हमारे बहुत बहुत दोस्त हैं, चौधरी चरण सिंह साहब की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। सर प्लीज लुक आफ्टर द शुगरकेन फार्मर्स देयर, दे आर इन अ बैड स्टेट। आई एम नॉट जोकिंग। बड़ौत में, बागपत में बहुत हालत खराब है वहां पे।
जी बोलिए, अब आप बोलें सर। नहीं डॉक्टर बिल्कुल मलिक, बिल्कुल please continue। देखिए, जहां तक बागपत की अगर बात करें, बागपत में कई विधानसभा क्षेत्र हैं, बागपत, बड़ौद, छपरौली, अलग अलग विधानसभा, और इधर जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ने की बेल्ट की अगर बात कर लें, चाहे बागपत हो, गाजियाबाद हो, जी। मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, कई सारे जिले हैं, बिजनौर वगैरह, तो निश्चित रूप से हम किसानों के हित में निरंतर फैसले ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर प्रयासरत है कि किस तरीके से किसान का लाभ हो, और गन्ना किसान का विशेष रूप से हम ध्यान रख रहे हैं, और गन्ना किसान प्रायोरिटी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रहा है और भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए और गन्ना किसान की मैं समझता हूं सर, मैजिस्ट्रेट का तो निश्चित रूप सवाल से चिंता किया जाना आवश्यक है। और जो आपकी चिंता है, जो आपने विषय रखा, ये वोट बिल्कुल चोरी का आरोप है, वोट चोरी का आरोप है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये करेगा? एक लाइन में जवाब दीजिए डॉक्टर मलिक। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं वहीं आ रहा था। अब वोट चोरी, देखिए वोट चोरी का मैं यही कहना चाह रहा हूं, 2013 में ये मुद्दा नहीं था, 2014 में हम जीते सब चोरी होने लगा, और जम्मू कश्मीर में ये जीते सब ठीक हो गया, फिर हरियाणा में हारे तो सब चोरी हो गया, ये पश्चिम बंगाल जीत गए सब सही हो गया, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी की विधानसभा सीट हार गए थे। ममता बनर्जी को इलेक्शन विधानसभा कमीशन है क्षेत्र कि में नहीं शुभेंदु उत्तर अधिकारी ने प्रदेश हरा में? दिया, आपने अब वहां डिसबैंड भी चोरी किया। हो गया, जाए हार जाए। देखिए इन्हें पूरा, देखिए नहीं देखिए इन्हें क्या है ना, देखिए मैं इनकी समस्या समझाता हूं, पूरा देश इन्हें दे दो, सारा देश इन्हें जितवा दो, सर, चुनाव डीएम की बिल्कुल तो बात मत करो। लड़ो, और उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा, झाझा सर, जीत वो गए, सब ठीक है। अब झाए हार गए, वहां सब चोरी हो गया। ये देखिए बड़ी समस्या है। सर, अब इलेक्शन डीएम कमीशन पे आपको यकीन नहीं है, आज आप एक स्वतंत्र संस्था पे उंगली उठा रहे हैं, ये थोड़ा शॉकिंग न्यूज है। डॉक्टर इलेक्शन मलिक, कमीशन को आप फैब्रिकेटेड, डॉक्टर साहब, आप बड़े ज्ञानी बेकार, हैं। जी आप बड़े ज्ञानी क्या हैं, इलेक्शन सर। कमीशन डिसबैंड हो गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करेगा इलेक्शन कमीशन का? सर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में बात करिए ना, इलेक्शन कमीशन ने कैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को 3 को अपॉइंट कर दिया कि आप जवाब दें? दे कांट डू दैट सर, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द चार्टर। और अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर के, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट को लेकर के, अभी कोई इसको लेकर के कोई पार्लियामेंट में अभी कोई अमेंडमेंट पास नहीं हुआ है सर। या तो अमेंडमेंट पास करा दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल स्पीक फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और पूरे देश में कहीं पे हो, महाराष्ट्र में ऐसा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ब्रीफिंग देता है, हमेशा। वो कहता है, क्लैरिफिकेशन वो देता है। सर, हमेशा ये होता है। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सर, डीएम साहब कैसे दे नहीं, सकते हैं? देखिए जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का है और जहां तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, मैं पर्टिकुलरली इन जनरल एकदम कैटेगोरिक, मैं समझता हूं कैटेगोरिक आंसर दे देता हूं इसका पर्टिकुलरली। मोदी जी की उत्तर तरह, प्रदेश की बात, जैसे वो बहुत अच्छा बिल्कुल इनपुट देखिए, दे जहां देते तक हैं, उत्तर वैसे आप प्रदेश भी की दे बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, ट्रांसपेरेंसी कल भी थी, आज भी है, इन फ्यूचर भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। But how can the DM नंबर reply, 2, sir? हमें बिल्कुल देखिए, हमें सर, न्याय सर, में विश्वास रखना चाहिए। डॉक्टर मलिक, मुझे जी। ऐसा लगता है सर, इसमें आपको शायद जानकारी नहीं है, शायद। व्हाई डोंट यू जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल टॉक। हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं देखिए, जहां तक पर्टिकुलर डीएम की बात है, जी, बिल्कुल DM मैं की बात स्पष्ट कर कर रहा देता हूं। सर, नहीं DM देखिए, मैं एक बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट पे डीएम का सर आंसर दे टाइम देता क्यों हूं। देखिए खराब जहां कर रहे हैं, तक दूसरों को भी काम है बोलिए। सर। सर बोलिए ना प्लीज। जब उनको नॉलेज नहीं, उनको पता नहीं, मैं तो आ रहा हूं झूठी आपके बातें पास, क्यों निजाम करवा रहे हैं आप? साहब। निजाम साहब, एक सेकंड सर, उनको बोलने दें प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं देखिए ये जो पीछे से बोल रहे हैं और जिस प्रकार की ये टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इनका सर बिल्कुल सर गलत सर सर रवैया सर है। डीएम, और उसके साथ सर डीएम की बात करें ना। डीएम एसपी अरे सर, वो एसएसपी छोड़िए की सर, बात कर रहे हैं। जी सर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये हमें डीएम एसपी के रोल ना पड़ा है। नंबर 1 तो ये जो पीछे से ये बैठ के इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, और उसके साथ साथ जहां तक इनका जो रवैया है वो करते रहे। ये पूजा जी के साथ, पूजा जी को सर, बोले या district किसी को बोले, magistrate मुझे does फर्क not नहीं have the पड़ता, right. लेकिन मैं इन्हें नहीं बोल रहा हूं। और जब पत्रकार महोदय सवाल पूछ रहे हैं, जब सीनियर जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्हें पूछने दिया जाना चाहिए, ना कि इन्हें बीच में पूछना चाहिए। इतना इन्हें मालूम होना चाहिए। डॉक्टर मलिक साहब, द फैक्ट रिमेन्स अंडर जी। द लॉ, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन नॉट रिप्लाई। आई एम श्योर, नाउ होल्ड इट अ मिनट, अपने क्या नाम है उनका, ज्ञानेश कुमार, जो अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अमित शाह साहब के साथ काम किया करते थे, ही इज अ वेरी वाइज मैन। आई एम श्योर ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक एंड आई एम श्योर ही विल रेक्टिफाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी रेक्टिफाई कर देंगे। वो बिल्कुल, अमित शाह जी के साथ वाले मुद्दे को लेकर भी इन्होंने उठाया, और ओम बिरला जी के बेटी के विषय पे किस प्रकार की इन्होंने टिप्पणियां की। देखिए विपक्ष जो सोच रहा है, जिस प्रकार के ट्वीट्स कर रहा है, हमारे बीएल संतोष जी ने ट्वीट के माध्यम से इनका जवाब भी दिया। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी ने बकायदा इस चीज का जवाब भी दिया स्पष्ट तरीके से। ओम बिरला जी की बेटी के ऊपर पहले टिप्पणियां की, बाद में इस प्रकार की यहाँ टिप्पणियां करते हैं। ये हर जगह जो टिप्पणियां को खेल कर रहे हैं, हाथ जोड़कर इनसे निवेदन है, ऐसी टिप्पणियां ना करें। सर, बीजेपी के आईटी सेल से सीखा है सर। सर, आप लोगों ने सीखा है। लेट मी गो अक्रॉस टू निजाम साहब, उसके बाद आई गो टू मुकेश गांधी साहब फॉर समिंग अप। निजाम साहब, आप ये बताएं, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी, अपने तेजस्वी यादव साहब, हमारे अखिलेश यादव जी, बड़े मतलब बिल्कुल फोकस्ड एंड टोटल,
और राहुल गांधी जी की जो आज की तारीख में जो वोट अधिकार यात्रा यानी वोट चोरी यात्रा जो है उसके ऊपर तो क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है सर पूरे बिहार में, मतलब देखने को बनता है, फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। निजाम साहब बताएं। अभी मैं डॉक्टर मलिक को सुन रहा हूं, उनसे पूछिए कि अनुराग ठाकुर को जानते हैं क्या वो? हाँ जानते होंगे सर, वो छोड़िए ना सर। तो अनुराग नहीं तो सर फिर बोलना शुरू कर अनुराग देंगे। ठाकुर ने तो उसको खुद ही जस्टिफाई कर दिया कि कहां बेईमानी हो रही है। जस्टिफाई तो हमारी बात मत मानिए, कांग्रेस की बात मत मानिए, अखिलेश जी की बात मत मानिए। अनुराग ठाकुर ने जस्टिफाई किया ना कि 6 लोकसभा में बेईमानी कैसे कैसे हुई, उन्होंने दिखाया ना। उनके ऊपर एफआईआर आपने नहीं लिया, उनसे इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं पूछता, और वो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी का दिमाग कम हो गया है। अभी इस हैसियत में है और इनके नेता, सुनिए सर, इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री से लेके इनके मंत्री इस हैसियत में आज की तारीख में नहीं है कि वो आदरणीय राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे, क्योंकि राहुल गांधी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो कि वो जनता के हित का सवाल है और सारा पब्लिक डोमेन में है। कोई ऐसी बात मुझे वो बता दें जो राहुल गांधी गलत कह रहे हो। आप मुझे बताइए 10 बाई 8 80 फुट के 80 फुट से भी कम का रूम है, 80 लोग उसमें कैसे रहेंगे सर? एक ही घर में 50 बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? एक ही घर में 0 एड्रेस पर 7000 वोट कहीं बनाई जा सकती है क्या? 7000 वोटर की लिस्ट हमारे मुकेश भाई, आदरणीय मुकेश भाई को अच्छे से पता है कि 7000 वोटर महाराष्ट्र में सिडनी में एक ही घर में है। अरे भाई आप वो बात करो, ये हमको सिखाने की बात मत करो। आप जस्टिफाई करो कि अगर कोई गलती हुई है उस सुधार की बात करो। आप बताओ कि अधिकारी ने गलत कर दिया, हो सकता है इसने कर दिया हो, लेकिन आप ये दावा करना कि राहुल जी का भेजा कम है, आपके प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है आज की तारीख में कि संसद में राहुल गांधी के मुकाबले वो खड़े हो सके। हाँ करेक्ट, वो खड़े हो सके। आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी का दिमाग कम हो गया। राहुल गांधी तो जैसा देश में जाते हैं जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तब जितनी सर मुकेश भाई जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि राहुल गांधी ने जिन जिन चीजों के लिए कहा, जिस जीएसटी का आप चार्ट चेंज कर रहे हैं, राहुल गांधी ने 8 साल पहले कहा, जिन जिन चीजों को राहुल गांधी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री आज मजबूर होके नाक रगड़ के आज उनकी बातों को मान के लागू कर रहे हैं। कल राहुल गांधी की इसी बात को, जिसकी यात्रा चल रही है, उसी यात्रा को लेके आप देखना, हम सभी इसी डिबेट पे रहेंगे मुकेश भाई। ये इसी बात को लेकर उनको एक्सेप्ट करना होगा और दर्जनों अधिकारी इनके जेल जाएंगे, आप खुद देखना। तो ये झूठी बातें घर की बात कर रहे बंद करें। निजामुद्दीन साहब, वो राहुल गांधी का नारा है, राहुल गांधी जी का नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, और जबरदस्त तरीके से। मगर आपने 2 कदम, आप आलोचना सुन नहीं सकते। आपने एक पत्रकार शिव अरूर एक पत्रकार, सुनिए 2 मिनट सुनिए, शिव अरूर एक पत्रकार है जो आलोचना किया राहुल गांधी जी का, उस पर आपने एफआईआर रजिस्टर कर दिया। आप सुनिए सर, एफआईआर रजिस्टर कर दिया, प्रेस फ्रीडम पे आप कहते हैं प्रेस फ्रीडम, आपने ही एफआईआर लॉन्च कर दिया उसके ऊपर कि आपने राहुल गांधी जी आलोचना कैसे कर दिया। 11 साल से हम आलोचना ही सुन रहे हैं, और उसके पहले जिन लोगों ने राजनीति किया है हमेशा से जो है अपोजिशन सरकार से सवाल पूछती थी। अभी अपोजिशन से जो है सरकार अब अपोजिशन से सवाल पूछती है, दोनों में यही फर्क है। अब अगर मोदी जी कोई गलत काम कर जाएं तो यहाँ की मीडिया पूछती है कि राहुल जी आपने ऐसा क्यों होने दिया। अरे क्या बकवास की बातें करते हैं। आपने पत्रकार पे एफआईआर लॉन्च किया, आपने पत्रकार पे एफआईआर लॉन्च कर दिया बिकॉज़ ना राहुल गांधी जी का वोट चोरी का आलोचना किया। ये होगा जो गलत करेगा। आप जिस तरह के टेलीविजन डिबेट गोदी मीडिया दिखाती है या कराती है, उसको आप देख के शर्म महसूस करेंगे। प्रधानमंत्री आम काट के खाएगा कि चूस के, यह भारत के प्रधानमंत्री का सवाल जवाब है। 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री है, उसकी हैसियत है पूरी दुनिया में, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या है? नहीं तो क्या है सर? वो तो अक्षय कुमार ने पूछा था सर, वो तो नहीं किसी ने भी पूछा हो, किसके पूछा गया। मगर कांग्रेस ने हमेशा प्रेस फ्रीडम को आगे माना है, प्रेस फ्रीडम का, पत्रकारों का फ्रीडम पर बात किया है। आप बात जो पत्रकार आलोचना करे उस पर केस फाइल कर रहे हो। जगह है जो सवाल बनता है, जो पूछना चाहिए। अभी हमारी बहन ने कितना बढ़िया से यूरिया के विषय को पूछा, आप यूरिया के विषय को नकार जाइए, दूसरे में चले जाएंगे। मर रहे किसानों का हिसाब है क्या? खुदकशी कर रहा है किसान, लाठीचार्ज हो रहा है किसानों पर, बेटियों की लूटी जा रही है, रेप हो रहे हैं।
इनके मंत्री, इनके विधायक इन्वॉल्व है, उस पर सरकार बयान नहीं देती। बयान दे रहे हैं आपके राहुल गांधी का दिमाग कम हो गया है। आज देश का वो अपोजिशन लीडर है। सर यूरिया आ रहा है ना अभी चाइना से। मोदी जी ने अपनी सारी बेईमानी की दास्तान लगाने के बावजूद भी वो चुनकर आया और लीडर अपोजिशन बना। सवाल का जवाब देने के हैसियत में बीजेपी उसके गुर्गे। फडणवीस जी का कहना है, फडणवीस जी का कहना है कि एफिडेविट देना पड़ेगा। बोले कि मैं विधानसभा में वोट लिया हूं, तो मैं हाई कोर्ट में फडणवीस साहब बोलते मैं एफिडेविट नहीं दूंगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना पड़ा मैं एफिडेविट नहीं दूंगा क्या? मैं बोलूंगा विधानसभा में वोट लिया हूं। मेरी बात, 18,000 एप्लीकेशन जो है समाजवादी और उनके नेताओं ने दिया है, पूरे देश के सामने चिल्ला के अखिलेश जी कह रहे हैं, पूरे देश में सामने आ रहा है एफिडेविट। तो उन एफिडेविट का आपने जवाब दिया क्या? एक दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि अपराध मैं करूंगा और मैं एप्लीकेशन दूंगा, क्या आप जी बोलिए सर। अपराध किया तो मुझे एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं अपराध किया हूं सर, मेरा एफिडेविट लो। एफिडेविट उससे लेना पड़ेगा जिसने अपराध किया। एफिडेविट देने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, लेकिन उसके बचाव में बीजेपी उछलती है। भाई हमने बीजेपी से कोई सवाल पूछा है क्या? हमने बीजेपी के किसी आदरणीय नेता से सवाल पूछा क्या मुकेश भाई? हमने तो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा है और इलेक्शन कमीशन से हम लड़ रहे हैं। आप आके जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्यों? इसका मतलब कि आप चोर हैं, आपने लूटा है यहाँ के देश के वोटरों को। अगर आपने लूटा नहीं है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? निजामुद्दीन जी, इलेक्शन ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कैंपेन गलत है। लोकसभा में मेरे को कम वोट्स मिला था और असेंबली में मेरा वोट बढ़ गया है और मैं सत्ता में आया हूं, तो मैं इनके सहमत नहीं हूं राहुल गांधी जी से जो कह रहा है कि वोट तो आपके मंत्री जो सच्चाई कह रहे हैं, बोले ड्राफ्ट हमारे पास आए थे तो आपने चेक नहीं किया। आप सरकार आपको याद होगा कि कश्मीर में बीजेपी के तीनों लोकसभा के कैंडिडेट ने अपना विड्रॉ कर लिया, चुनाव लड़ने नहीं गए। वो तीनों उनके सांसद जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना विड्रॉ किया पर्चा, वो इलेक्शन नहीं लड़ने गए क्योंकि उनको पता था आप जिन चीज के आड़ में आप ये बातें करते हैं उससे बेहतर है कि जो घटनाएं हो रही हैं आप या तो एक्सेप्ट करो या उसकी सत्यता लाकर तो मैं एक सवाल पूछ लूं सर आप आपसे। उल्टी बातें करते हैं। सर आपसे एक सवाल पूछ लूं निजाम साहब कि जी सर, इसका हशर क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर इसका हशर यही होगा कि बिहार में आप देखिए, आप ये कह रहे थे, सभी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि भैया बिहार में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा ने बिहार में पलटी कर दिया। आज बिहार की जनता रोड पर आ गई, एक दो नहीं लाखों आ रहे हैं और करोड़ों तक आएंगे और शायद ये पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन होगा और हश्र होगा श्रीलंका की तरह। लोग दौड़ा के मारेंगे लोगों को, क्योंकि आप सबूत दी। देखिए सर, मैंने अपराध किया और अगर कि आपके पास सबूत है तो मुझे जेल भेजो। अगर सुनिए, आप चुप रहिए श्रीलंका की तरह दौड़ा के मारेंगे मिस्टर मलिक, आप चुप रहिए। मैं आपको सुन रहा था, जब आपका मौका आएगा आप जितना मर्जी बोलिए। नहीं, आप बोलिए, आधा घंटा बोलिए, पूरा घंटा बोल लो, 4 घंटे बोलो, नहीं आप लेकिन झूठी, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं आपको सुनूंगा, यहाँ बैठ के सब चले जाएंगे तब भी मैं सुनूंगा, लेकिन ये दौड़ा के मारेंगे क्या है भाई साहब 10 सेकंड, केवल 1 सेकंड, ये दौड़ा के मारेंगे क्या है? ये दौड़ा के मारेंगे क्या है? ये आपने अभी बोला दौड़ा के मारेंगे श्रीलंका की तरह। मैं तो यहाँ बैठा हूँ सर, बिहार में भी नहीं हूँ। बिहार की जनता आपसे, आपका आज देश आपसे पूछ रहा है। नहीं, ये श्रीलंका की तरह दौड़ा के मारेंगे क्या आपने बोला है अभी आप कह रहे हैं श्रीलंका की तरह दौड़ा के मारेंगे। उसको सारा अधिकार है। अभी आपके देखिए, अभी ये शुरुआत की बात कर रहे हैं। अगर आप ये तख्तापलट की, दंगों की, आतंक की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करेगा, वोटों की डकैती करेगा तो जनता उसको छोड़ देगी। लेकिन निजाम साहब, क्या होगा? निजामुद्दीन साहब एक सेकंड, डॉक्टर मलिक 1 सेकंड सर। निजामुद्दीन रोहिंग साहब, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी बात सुनिए जरा प्लीज अंडरस्टैंड माय कंफ्यूजन। मेरा कंफ्यूजन कहां पैदा हो रहा है? आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि आप 65 लाख लोग जिनके नाम आपने लिस्ट से निकाले वो आप दीजिए और उसमें बताइए कारण क्या है, क्यों निकाले। वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी है और उसके कारणों के ऊपर अभी रिसर्च हो रही है कि ये कारण ठीक है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने
एक और हिदायत दी है इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक और हिदायत दी है कि या तो वो 11 डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो हैं, या आधार कार्ड। आप आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट करें। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। और उसको लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्शन गई है सुप्रीम कोर्ट की कि आपके पास 1,60,000 के करीब बीएलए हैं, उन सब की मदद लीजिए। जिन जिन के नाम आपको लगता है, पूरी बात सुन लीजिए सर, जिन जिन के नाम आपको लगता है वोटर्स लिस्ट में नहीं है, उनके नाम वोटर्स लिस्ट में लाने की आप मदद करें। सर और क्या चाहिए? अब आप काम कीजिए ना सर, पॉजिटिवली लीजिए ना इसको। आप अपने वोटर्स लिस्ट में लाइए। बोलिए सर। सुनिए ना सर, हाँ बोलिए सर। यही बात तो हम लोग इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे ना भाई, हम लोग कोई और बात तो कह नहीं रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे ना। जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा उनको नहीं पड़ा वो तैयार थे क्या? आप बताइए ना सर। उसके पहले भी उन्होंने यही कहा कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे ये सारा चीज, हम तो जो है वही करेंगे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट खुद एग्रेसिव हुआ और ये दोनों जजमेंट दिया और उनको 3 दिन में लाना, सर ये कोई नई चीज तो मांग नहीं रहे थे, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, या जो लोग मांग रहे तो थे। एक छोटी सी चीज कुछ अलग से मांगा क्या? राइट, सो आई विल कम बैक टू यू सर, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल हैव टू गो टू मुकेश गांधी साहब। लेकिन निजाम साहब शायद आपको बुरा लगे, छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी प्लीज। टीएन सेशन साहब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। टीएन सेशन नाम याद है? टीएन सेशन के खिलाफ भी कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने टीएन सेशन के पक्ष में जजमेंट दी थी। सीधी बात है। नाउ लेट मी गो अक्रॉस टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, डोंट यू थिंक इट इज अबाउट टाइम, मैं आपको एक एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, फॉरगेट पॉलिटिकल एफिलिएशंस फॉर द मोमेंट, राजनीतिक झुकाव किसका कहां पर है वो छोड़ दीजिए। मैं ये हर एक से सवाल पूछूंगा, इंक्लूडिंग डॉक्टर मलिक, पूजा मिश्रा जी, निजामुद्दीन रहीम साहब। इलेक्शन कमीशन शुड नॉट ओनली बी फेयर, इट शुड बी सीन टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट। सबसे बड़ी बात यह है, अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार अगर एलिगेशन लग रहा है, आपको लगता नहीं इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव, वेरी फ्रैंकली, जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं आज की तारीख में, ईसीआई के जो चेयरमैन साहब हैं, उनको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं, व्हाई डिड ही नीड टू बी सो डिफेंसिव? उनको तो सीधा आके बोलना चाहिए था, भाई हो सकता है कुछ टूटियां रह गई हो, ऐसी क्या बात है, हो सकता है कमियां रह गई हो, बहुत बड़ा देश है यार, 150 करोड़ का देश है, हो सकता है। We would welcome any suggestion from any political party. After all, we are all in this together. Don't you think the election commissioner should have said something like this? मुकेश गांधी साहब, अब आप बोले। देखिए राजीव जी, जी सर, हमेशा इतने बड़े लोकशाही देश में एक परिवर्तन की प्रक्रिया जब कोई नेता शुरू करता है, तो उस वक्त जो ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं वो उनमें त्रुटियां निकालने का प्रयत्न करते हैं। उनके त्रुटियां निकालने का जो कारण है वो भी वाजिद है, चलो आप त्रुटियां निकालो, पर त्रुटियां निकालते निकालते जो सरकार आज लोक कल्याण का काम कर रही है, देश की पोजीशन को साउंड रखने के लिए चारों बाजू पे विरोध है, चारों बाजू से आज देश घिरा हुआ है। अमेरिका जो हमारा मित्र था वो आज हमारा दुश्मन बन के खड़ा हुआ है, नहीं है और उसके बीच में आज इंडिया चाइना की रिलेशनशिप का एक नया मोड़ आ रहा है, हमारी देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम करना है। ये सारे इश्यू के बीच में राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी इमोशनल ब्लैकमेल टू द मासिस, ये उसका एक काम है, और नेगेटिव नरेशन खड़ा करना और देश को मिसगाइड करना, और जो फॉरेन से उनके आका जो स्क्रिप्ट भेजते हैं वो स्क्रिप्ट लेकर के पूरे देश में बवाल मचाना, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और साथ में उनको समाजवादी पार्टी के नेता हो या शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, ये सब सपोर्ट दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। आपको इश्यू उठाना है तो देश में रोजगारी कैसे बढ़े उसके लिए बात करो। देश में अभी है, पूजा मिश्रा ने कहा कि यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो इश्यू अच्छा है, उसके लिए बात करो। पर आप नेगेटिव नरेशन बढ़ा के खाली एक बवाल मचाना चाहते हैं, और आज जो रैली में उनको राहुल को सक्सेस मिल रही है ना, वो सक्सेस नहीं है, उनकी फेलियर होगी। बिहार की जनता उनको जानना चाहती है कि क्या है, और वहां प्रशांत किशोर का भी ब्रेन वॉश चालू है, और इनके बीच में ये बीजेपी का कमल है ना, खिल के कादव के कीचड़ के बीच में से
ये खिल के वापस पूरे बिहार को एक नई दिशा देने के लिए तैयार रहेगा। मैं गांधी साहब और एक बात कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन से देश में इतना आंसरेबल रहता है? अमेरिका में, अमेरिका इज द यूएसए इज द बिग डेमोक्रेसी स्टेट, पर हमारे इंडिया के अंदर आज जिस वक्त कांग्रेस का राज था, इंदिरा गांधी की मोनोपोली थी, राजीव गांधी की मोनोपोली थी, उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर कभी भी इतना सहयोगात्मक बात नहीं करता था। आज इलेक्शन कमिश्नर हर चीज का जवाब देता है और हर चीज के बारे में वो लोग ऑपोजिशन को कवर करता है। गांधी साहब ऐसा कौन देता है? गांधी साहब। और ये करने के बाद में भी आप इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उसने ये नहीं किया, but he has to answer. गांधी साहब, he has to answer. ये बात एकदम गलत है। गांधी साहब, he has to answer. अखिलेश यादव जी जब कह रहे हैं कि कुर्मी पाल बेलवंशी जो पीडीए के वोट उन्होंने काट दिया, वो तो काट दिया, तो जवाब तो देना पड़ेगा कि ये वोट कैसे काट गए, जो लोअर कास्ट के लोग, तो उनको अपने जवाब दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे, अवॉइड कर रहे हैं, नहीं दे रहे। आज आपकी एक चीज और सुनिए, वक्ताने पर जवाब एक चीज और सुनिए, गडकरी जी के खुद के अपने वोटर्स, नियर फैमिली वोटर्स को करीबन 1.5 लाख लोगों को काट दिया गया, तो क्या जवाब नहीं मांगेंगे ये कैसे कट गया है, कौन काट दिया है? तो मुकेश गांधी साहब, लोकतंत्र में आपको जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अखिलेश यादव सीनियर ऑपोजिशन लीडर, तेजस्वी, जितने भी लोग हैं उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप ये बोलेंगे एफिडेविट दो, ये फॉर्म भरो, पार्लियामेंट में जवाब चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर जवाब उनको देना पड़ेगा और वो वक्त आने पे सब चीजों का जवाब देते जाते हैं। अभी क्या होता है कि ऑपोजिशन एग्रेसिवली बात करता है कि आज मैंने सवाल पूछा तो मुझे को आज ही जवाब चाहिए, पर उनको इलेक्शन कमिश्नर को पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा सर्वे करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा। आज रात को नींद नहीं आई आपको और आप सुबह पूछेंगे मुझे नींद क्यों नहीं आई? पार्लियामेंट में मुकेश गांधी साहब, पार्लियामेंट में पूछा है अखिलेश यादव जी, पार्लियामेंट में पूछा है राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पार्लियामेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहे कि ये वोटर्स किस प्रकार से एलिमिनेट किया है, ये सब हमको इंफॉर्मेशन दे दो। आप उनसे एफिडेविट मांगेंगे, आप बोलेंगे फॉर्म ये भर दो, आप ये लॉ के हिसाब से, और पार्लियामेंट कहता है, लोकसभा स्पीकर कहता है कि यू कांट स्पीक, इसमें बहस नहीं होगा इलेक्शन कमीशन काम जब चल रहा है, तब रिफॉर्मेशन का काम जब चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का काम जब चल रहा है डेमोक्रेसी में, तो थोड़ी चीज इधर उधर होती है, उसके अंदर इतना बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। और आज पूरे देश की कांग्रेस ने जो डेमोग्राफी बिगाड़ दी है, वो डेमोग्राफी क्यों बिगाड़ी उसने हमारे देश की? 1947 में गांधी जी और नेहरू जी ने मिलके हमारे देश की डेमोग्राफी को, अभी 50 साल पहले से नेहरू जी अभी भी आ रहे हैं हमारा देश क्या डेमोग्राफी थी हिंदुस्तान की? हमारी हिंदुस्तान की डेमोग्राफी में हिंदुस्तान पाकिस्तान मजहब के नाम पे हुआ था, धर्म के नाम पे हुआ था, बट वी वर नॉट अ हिंदू स्टेट, बट वी डिडंट एग्री, बट वी डिड नॉट एग्री। मुकेश गांधी साहब, वी डिडंट एग्री। मुकेश गांधी साहब, सरदार पटेल, एक मिनट, सरदार पटेल एंड पंडित नेहरू एंड मौलाना आजाद एंड सरदार बलदेव सिंह, रफी अहमद किडवाई, हमारे आसफ अली साहब, और उसके अलावा हमारे आचार्य कृपलानी, वी डिडंट एग्री। We said we don't believe in the two nation theory. Sir, we said we don't believe in the two nation theory. गांधी जी ने माउंटबेटन के, सर मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, आप इतिहास देखो। I am sorry sir, I am really and truly sorry. Let me quote Guru Golwalkar to you. दे सकता हूँ मुकेश गांधी साहब, let me quote Guru Golwalkar to you. गुरु गोलवालकर जी कहते हैं अखंड भारत होना चाहिए, यानी अफगानिस्तान से इस तरफ जितने भी लोग रहते हैं वो सब भारतवासी हैं। Because why? Because even the RSS does not believe in the two nation theory, which is why there was no demographic change here. Our Muslims are here, Christians are here, Sikhs are here, everybody is here. We don't believe it कि हमारे मुसलमान क्यों जाए पाकिस्तान। जिस मुसलमान ने ये तय किया कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, क्यों जाए वहां पे? What do you mean by demographic change? क्यों निकला गया? किसको? उनके सामने क्यों गांधी जी ने कोई मूवमेंट नहीं खड़ी की? किसके सामने? कलकत्ता के अंदर। Really? Do you know anything at all? Have you ever read anything? आपने कुछ पढ़ा है? आपने कुछ पढ़ा है? नोआ खाली में बैठ गए थे खुले में। Excuse me. अरे सर, Excuse me. अरे मुझे जवाब दे दीजिए। उस चीज को हटा रहे हैं इलेक्शन से,
मुझे देने दीजिए जवाब। नो सर, नो सर, नो सर। पर डिबेट था उससे ये हट रहे। नहीं सर, नो 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 नो। आई वुड लाइक टू आंसर दिस। मिलके बंगाल में सरकार बनाई थी, मिलके बनाई थी, ये आरएसएस हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलके बनाई सरकार। और मुस्लिम ये लीग ने दोनों और हिंदू अंग्रेजों महासभा के ने बनाई दलाल थी। थे, कोई अंग्रेजों बुराई के नहीं। तलवे और चाट फ्रंटियर के ने थे। बनाई। नहीं, और ये उन्होंने नरेशन ये आपका कहा- और फ्रंटियर ने भी बनाई। हिंदू महासभा ने पावर में कभी आए मुस्लिम, नहीं। what are you talking? आना You know जरूरी anything? नहीं है, पीछे अरे रहना क्या बोल जरूरी रहे हैं है। सर? उनको तो हिंदू हिंदुओं महासभा को वर्क protect विद द करने मुस्लिम का था। लीग। हिंदू महासभा वर्क विद द मुस्लिम लीग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना Yes. had governments together in Bengal and in the northwestern Yes. India province. What are you और talking, भारत sir? बंटवारे की यही When जिम्मेदारी You है। can sue me. cheer, सर मेरे खिलाफ केस करो, मैं आपको डिस्प्रूव करके देता हूं। बोलिए क्या बात कर रहे हैं आप? अरे छूटे हैं, अरे छोड़िए ना। करने का। क्या जो बात कर रहे हैं विषय मुकेश था, गांधी उसको साहब? हटाने के लिए ये छूटे चलिए, लोग मैं हैं। उसके ऊपर बात बीजेपी सर एनी टाइम, सर आई एम विलिंग टू डिबेट विद यू एनी टाइम। कमिश्नर से दूर हो जाती है सर बात एनी अभी टाइम पूरी। आई एम विलिंग टू डिबेट ऐसे विद लोगों यू। के साथ लेकिन डिबेट जो मत प्रदीप जी ने सवाल पूछा, जिसको बट दैट्स अ ये छूटे डाइवर्शन। नहीं है, ये छूटे हैं। बट ये निजाम दोनों साहब, झूठी बात निजाम कर रहे हैं। साहब, वन सेकंड, दिस इज अ डाइवर्शन। प्रदीप जी ने आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज आंसरेबल, he is answerable to the people of India. When the leader of opposition, namely Mr. Rahul Gandhi, who has a constitutional post, by the way, he is leader of the opposition, that's a cabinet rank post. उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर और 65 लाख जितने जो वोटर्स की लिस्ट है, जो जिन लोगों को बाहर कर दिया गया उस पर डिस्कशन कीजिए। आदरणीय स्पीकर साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा लोकसभा में। अरे लोकसभा में नहीं होगा तो कहां होगा यार? सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन। Sir, why not? We are the people of India. We need to know the answers. मुझे मालूम होना चाहिए कि 65 लाख वोटर्स को आपने कैसे बाहर निकाला। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो आकर के आपने लिस्ट फाइल कर दी। This is not done, sir. Absolutely not done. क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर पूजा मिश्रा। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट फॉलो करती है। तो ये डेमोक्रेसी है। अबे आप सब्जेक्ट मत चेंज करो मुकेश भाई। मुकेश भाई वो बात करो जो Let me go to Dr. Pooja Mishra. Let me go to अब आप Pooja उल्टी Mishra. बातें कर रहे हैं। Let me go to Pooja Mishra जी। Can I ask पूजा मिश्रा जी? बोलिए। पूजा मिश्रा जी, डेवलपमेंट के रफ्तार जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि जो ट्रेड शो हमने करने वाले 500 बायर्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया। 80 देशों से आ रहे दुनिया के विदेशी 80 कंट्रीज से लोग आ रहे। 340 बायर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया। 75 नेशन ऑलरेडी पार्टिसिपेशन कर दिया है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचेगा। ये जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश विकसित भारत का एक जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एकदम विकसित भारत का पद पर चले। कैन यू डिनाई इट? जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई ये तो कहे ना कि ये कंफर्म कौन करेगा कि ये फेक नहीं होंगे। आपको पता होगा इन्वेस्टर भी आए थे ना उत्तर प्रदेश में, वो भी सबमिट कराया गया हुआ था। उसमें से जो है इन्वेस्टर फेक निकले। आप सोचिए कि गवर्नमेंट कुछ करा रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स जो जिनको इन्वेस्ट करना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी थे उनका पैसा लेकर के भाग जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि कौन लेगा कि जो 80 देशों से आप लोगों को लेकर के आ रहे हैं, जो कह रहे हैं मार्केट में लेकर के जाएंगे, वो हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोगों के मेहनत की कमाई होगी उसको ठग करके नहीं भागेंगे। ये तो सरकार के जो कार्यक्रम हो गए उनसे भरोसा उठ गया हुआ है। ये तो हमने नहीं सुना हुआ था कि जो है ये समिट हो रही है, समिट में फेक इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। कोई किसी को फॉरेन कंट्री से कोई कंपनी आई थी, अब पैसे लेके भाग गई है, उनको ढूंढिए। 340 रजिस्ट्रेशन है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। 340 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। 75 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिक्कत ये ना कि they have this polarization film for religion only, in politics only. They don't have the polarization film. Polarization मतलब जब लाइट को हम लोग मोनोक्रोम में ले जाना चाहते हैं, एक फिल्म यूज करते हैं ना, तो एक फिल्म यूज करते हैं, जो लाइट हम चाहते हैं, व्हाइट लाइट आ रही है, उसमें सारी 400 टू लेकर 740 तक जो नैनोमीटर की लाइट्स आ रही है, हम उसको पोलराइज करते हैं किसी एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ले आने के लिए। भाजपा उसको कहते हैं पोलराइजेशन फिल्म।
तो जो पोलराइजेशन फिल्म है वो भाजपा के पास में सिर्फ और सिर्फ राजनीति में है, धर्म में है, उसमें पोलराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, इसमें नहीं है, इसमें इन्होंने पोलराइजेशन का फिल्टर नहीं लगाया। वो पोलराइज करे कि जो ऑथेंटिक है वही आए, जो इन्वेस्टर ऑथेंटिक है वही आए। आप सोचिए कि सरकारी पैसा खर्चा होता है, सरकारी प्रोग्राम होता है, रजिस्टर्ड होते हैं और वो फेक निकलते हैं, और फेक निकलते ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी होते हैं छोटे छोटे, जो इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है बिल्डिंग करने वाले हैं, भाई उसको शांत लेकर रहो भाग ना, जाते हैं। सुन लो आपका टाइम आएगा, आप बोलो। लेकिन पूजा जी, क्या ये बात ठीक है कि लास्ट टाइम जब ऐसा समिट हुआ था, आई एम ओनली गोइंग बाय रूमर्स, आई नीड क्लैरिफिकेशन, आई थिंक डॉक्टर मलिक विल बी एबल टू टेल अस। आप पूजा जी आप भी बता दें, इज इट ट्रू के कुछ लोग ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही थे, जो गोरे चिट्टे थे, उनको सूट बूट में बिठा दिया गया था वहां पे, ये कहने के लिए कि बोलने के लिए कि भाई आप जो हैं वो इन्वेस्टर आए हुए, इज दैट ट्रू? आई जस्ट वांट टू नो। ये दैनिक जागरण में खबर छपी थी, मैं आई एम नॉट श्योर। And Dainik Bhaskar has the videos too. Dainik Bhaskar, if you go through the Dainik Bhaskar news, you will get to know that the Dainik Bhaskar was precise with the videos and their posts too. Why? Dainik Bhaskar was that much precise. लेकिन पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद अविरल मलिक जी भी इस पे बात करें। उत्तर प्रदेश इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, लेट्स बी वेरी क्लियर। अब उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, माय गॉड, लुक एट वो काशी विश्वनाथ, अयोध्या राम मंदिर और अपना ये कृष्ण जन्मभूमि। अरे वृंदावन में तो जगह नहीं मिलती साहब। अभी जन्माष्टमी जो हुई है, लोग वहां से आए, उनका तो यार जगह नहीं मिलती वहां। तो मैं सच बोल रहा हूं, वहां पर अगर अच्छी तरह उसको डेवलप कर लिया जाए, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। 1 ट्रिलियन क्या, आई थिंक उत्तर प्रदेश कैन गिव यू $5 ट्रिलियन। तो होल इंडियन इकोनॉमी विल डिपेंड ऑन यूपी। विधानसभा में आपको नहीं पता क्या? बोलिए। वहां को लेकर के भी अध्यादेश आया विधानसभा में। अध्यादेश क्यों आया, क्या जरूरत थी अध्यादेश आने की? हम बताते हैं आपको क्या जरूरत थी। एक्चुअली क्या है ना कि सरकार ने हमारे ना 500 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया। कहाँ एलोकेट किया? हमारे 500 रुपए एलोकेट किए गए कि हम वृंदावन की गलियों को डेवलपमेंट में करेंगे। पर वहां पे क्या दिक्कत आ गई, जो गोस्वामी थे, जो सेवादार थे, उन्होंने अपोज किया कि आप कैसे करेंगे, आप वृंदावन की गलियों के लिए तो पॉपुलर है, आप गलियां ही खत्म कर देंगे तो कल्चर खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो चले जाते हैं हाईकोर्ट के लिए, हमारी सरकार हाईकोर्ट जाती है, तो हाईकोर्ट से वर्डिक आता है, वो वर्डिक आता है ठीक है जो ये आपने 500 करोड़ पैसे अलोकेट किए हुए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वृंदावन के डेवलपमेंट के लिए, पर शर्त ये है कि जो जमीन पे आप काम करेंगे या जो रोड पे काम करेंगे वो लैंड जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो जो है कान्हा जी के नाम पे रजिस्टर्ड हो या फिर जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो, और वहां के सेवादार से आपको जो है सामंजस्य बिठा करके ही काम करना पड़ेगा। अगर वो परमिशन नहीं देते और वो लैंड जो है ट्रस्ट के नाम पे या फिर जो है कान्हा जी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती तो आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 500 करोड़ का घोटाला जाने दिया जाए? वो क्या करते हैं, वो करते हैं, ले आते हैं अध्यादेश। हमारी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार अध्यादेश ला करके, अध्यादेश ये लेकर के आती है, वो लॉ बन गया है अभी के समय पे, वो अध्यादेश ला करके कानून बनाते हैं कि वहां पे एक ट्रस्ट बनेगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसको नहीं, जो ट्रस्ट बनेगा वो मंदिर का ट्रस्ट जो है सरकार बनाएगी, उसमें मेंबर्स भी सरकार करेगी, उसके बाद में ट्रस्ट के नाम पे जमीनें होंगी, भाई कान्हा जी की जो जितनी भी जो है सब जमीनें मंदिर के नाम पे है, मंदिर ट्रस्ट के नाम पे है, वो ट्रस्ट के पास में चली जाएगी, फिर सरकार काम करेगी। ये इस तरीके से तो जो है काम करते हैं। अभी आपको और जानकारी नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो है एक रिपोर्ट आती है, मैं रिपोर्ट का नाम भूल जा रही हूँ, CEGA करके होती है, CAG करके होती है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आई हुई है। उस रिपोर्ट में जो है इतना बड़ा घोटाला निकल करके आया कि टेंडर्स उनको भी दे दिए गए जो सिर्फ एक टेंडर्स पड़े हुए थे, किसी एक व्यक्ति ने टेंडर डाले और मल्टीपल टेंडर्स उसी व्यक्ति को दिए गए। मतलब वो निकल करके आया उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है और उसी के तहत ये कर रहे हैं। आपने कहा उत्तर प्रदेश में बहुत अपॉर्चुनिटी है, पर वो कहाँ है, किधर है, किसके पास चली जा रही है, दिख क्यों नहीं रही है? मैंने आपके चैनल पे न जाने कितनी बार कहा है कि पीजीटी का फॉर्म 2022 जून में भराया गया हुआ था और जो है अब तक उसका एग्जाम नहीं हो पाया है, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार चली जाने के बाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी एग्जाम हो पाएगा। पूजा मिश्रा जी 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ ब्रज भूमि में इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट प्लान, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, राधाकुंड, और जिस प्रकार से प्रदीप जी, why don't you visit इलाहाबाद?
Just visit Allahabad. You visited during the Mahakumbh. Now visit Allahabad. You will get to know where did this 20,000 crore rupees go. You will get to know where this 30,000 crore rupees will go. You will get to know how the government is working. I already told you, even the report says that कि आप सिर्फ एक ही ठेकेदार भी अपने, अरे यहाँ पे तो ये भी चल रहा है, आपको नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के विधायक है, अगर किसी को टेंडर पास होता है तो उनसे 25 लाख रुपए लेते हैं रंगदारी, और अगर आपने मना किया तो आपके यहाँ उद्घाटन करने नहीं जाएंगे, और जो है आपके जो कर्मचारी है उनके साथ में मारपीट भी करेंगे। ये जो है कार्य करने का काम आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और ये काम ये हम नहीं कह रहे हैं, ये FIR कह रही है, रिपोर्ट कह रही है, इनका लुकआउट यही होता है। जी, let me go to डॉक्टर अविरल मलिक। अविरल मलिक साहब, अभी जो पूजा मिश्रा जी ने कहा, अरे मुकेश गांधी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, अविरल मलिक साहब बागपत से हैं, मुझे उनसे बात करने दीजिए ना, वो यूपी से हैं वो। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक, इज दिस ट्रू सर? क्या ये सही है जो आप वृंदावन की जो भी बात करी? भाई मेरी समझ में तो अभी वहाँ पे आपकी ब्रह्मोस मिसाइल की भी फैक्ट्री आ रही है, उसके अलावा फॉक्सकॉन भी बहुत बड़ा वहाँ पे अपनी फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने वाला है, और उसके अलावा न जाने कितने, इवन सैमसंग इज कमिंग ओवर देयर, देयर इज अ ह्यूज ड्रोन्स फैक्ट्री व्हिच इज आल्सो बीइंग प्लान्ड ओवर देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर क्या ये बात ठीक है जो वृंदावन के, ये बात तो ठीक है कि वहाँ की जो मठाधीश हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो धर्माधिकारी हैं, सब लोगों ने कहा था कि भाई ये गलियां जो हैं वृंदावन की, वही तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वृंदावन की, तो उसको ही अगर आप तोड़ देंगे, जैसे अयोध्या में आपने पता नहीं 300 या 400 मंदिर तोड़ दिए, क्या आप वैसा करने वाले हैं काशी में जैसे किया आपने? तो सर अब आप बताएं, क्योंकि लोगों में तो ऑपोजिशन है सर। बोलिए डॉक्टर मलिक जी। नहीं देखिए, जहां तक विषय हेरिटेज का, जहां तक कल्चर का विषय है, और जहां तक एक तरीके से विषय है, मैं समझता हूँ जिस तरीके से संरक्षण करने का, तो जितना भी हम कर सकते हैं निश्चित रूप से पूर्ण रूप से कर रहे हैं, और वो हमारी संस्कृति है, और संस्कृति को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य, इसमें कोई एक तरीके से दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मथुरा का, वृंदावन का, और उस क्षेत्र के विकास का, मैं समझता हूँ किस तरीके से पहले सड़कों में वहां गड्ढे रहते थे, वो भी सबने देखा। अगर मथुरा में ट्रैवल करके जिसने भी किया होगा वो सबने देखा हो किस तरीके से एक तरीके से सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, वो समझ में नहीं आया करता था। और आज अच्छी सड़कें मथुरा में हैं, वाराणसी में अच्छी सड़कें हैं, इलाहाबाद में अच्छी सड़कें हैं, निश्चित रूप से वो सबने देखा, और किस तरीके से आयोजन एक तरीके से बड़े स्तर पे होते हैं वो भी सबने देखे हैं। और मैं समझता हूँ जहां तक विषय है एक तरीके से मथुरा का, तो जितना भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से वहां परिवर्तन लाया जाएगा अच्छाई के लिए। लेकिन जहां तक विषय है पुरानी संस्कृति का, संस्कृति को किसी प्रकार से नहीं हिलने दिया जाएगा, किसी प्रकार से संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ये भी हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से पूजा मिश्रा जी के आरोपों का, पूजा जी ने कहा कि 25 लाख रुपया खा जाते हैं विधायक लेकर। देखिए, अगर कोई विधायक 25 लाख रुपए लेके खा रहा हो उसका सबूत दे देना चाहिए। और हमारे यहाँ किसी रूप में करप्शन नहीं होता, अगर करप्शन होता है तो कार्रवाई तत्काल होती है, जैसे ही सबूत लाया जाता है तत्काल कार्रवाई हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूजा जी के पास किसी विधायक का पर्टिकुलर अगर कोई सबूत है तो पूजा जी रख सकती हैं, निश्चित रूप से उसकी विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई निश्चित। डॉक्टर मलिक, वी कम टू द टॉपिक ऑफ क्रिमिनल नेता बिल। क्रिमिनल नेता बिल, मोदी जी कहा मैं किसी भी सीएम को जेल से ऑपरेट करने नहीं दूंगा, नहीं करने दूंगा। किसी भी, जैसे लालू यादव जी, केजरीवाल जी थे, मंत्री थे, जो करप्ट मिनिस्टर्स है, उनको जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 30 घंटे के बाद, 50 घंटे के बाद अपने आप सस्पेंड हो जाता है। लालू जी छोड़ के गए थे। हाँ, तो क्या गलत क्या उसमें? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, इसको अपहोल्ड कर रहा है मोदी जी। बोलिए जी। नहीं देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, मोरालिटी निश्चित रूप से है, और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी अत्यंत आवश्यक है, करप्शन फ्री इंडिया का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन लालू जी तो छोड़कर गए थे, पद छोड़ के गए थे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए, जिस प्रकार से आरोप की बात की जाती है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जेल से चलाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। और जनता इसलिए वोट नहीं देती है कि भाई वो जेल से राज चलेगा, जेल से लोकतंत्र चलाएगा, जेल से शासन चलाएगा, जेल से कैबिनेट चलेगी, जेल से सब कुछ अधिकारी संचालित होंगे। और अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से अपमानित करने का दिल्ली प्रदेश की जनता को काम किया, अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ जेल से चला दिया।
और जेल में जाके बैठ गए और जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। वो भी सबने देखा किस तरीके से जनता के वोट का अपमान हुआ। अब जेल में जा रहे हैं तो क्या जनता का वोट जनता ने इसलिए दिया कि वो जेल से शासन चलाया जाएगा उसके ऊपर? मैं समझता हूँ दुखद होता है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है और ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है। और इसमें कोई विपक्ष वालों के ऊपर ही होगा ये कानून लागू, ऐसा तो है नहीं। बीजेपी वाला होगा तो बीजेपी वालों के ऊपर भी होगा, इसमें इन्हें चिंता क्या है? जी निजामुद्दीन जी, जेल से चलने नहीं देगा मोदी जी सरकार, जेल से चलने नहीं देगा। केजरीवाल जी हो गए तो क्या उसमें गलत क्या कहा? राहुल गांधी जी काला टी शर्ट पहन के उसका विरोध कर दिया, बोले ये राजा महाराजाओं के सब वक्त में आप दोषी उसमें जेल में क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है, मोरालिटी है, इंटीग्रिटी अपहोल्ड हो रहा है? क्या तकलीफ है उसमें? सर अभी जो है डॉक्टर मलिक साहब ने कहा कि बड़ी मतलब दुख की बात है कि केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाए। आपने जबरन बेईमानी करके उसको बंद किया, उसको ही नहीं सत्येंद्र जैन को भी आपने बंद किया। सत्येंद्र जैन क्लियर कट ईमानदारी इस कोर्ट से बाहर आ गया, कौन जिम्मेदार लेगा? भारत के प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे? जिस योगी जी की तारीफ कर रहे हैं आप, आदरणीय योगी जी के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, आपने एक अध्यादेश लाया, सारे मुकदमे खत्म कर दिया। यानी ये आप जो है अपोजिशन को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। इस तरह की बातें करने से पहले अपने गिरेबान को झांकिए। आपकी कोर्ट, आपकी पुलिस ने उनको अरेस्ट करके भेजा ना सत्येंद्र जैन को। सर सत्येंद्र जैन ने क्या अपराध किया था? वो बच के आया ना, वो एक छोटी आदमी था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट किया उसको, लेकिन आया बाहर ना सर वो। और यही आपको कह रहा हूं सर कि ये जो ड्रामेबाजी होती है, जब इनका कोई फंस जाए तो उसके लिए कानून नहीं है, और जब कोई अपोजिशन का फंस जाए तो उसके लिए कानून है। अभी कोर्ट के हालात आप देख रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की बातें करना, इस तरह का धोखा देना देश को, इनसे कोई सीख ले। अरे सर अगर कोई आदमी एक्यूज्ड है, पकड़ा गया, अपराध किया है और उसे कोर्ट दंडित कर दे तो आप उसको जेल में रखिए, उसको फांसी दे दीजिए, सरकार से बर्खास्त कर दीजिए। आप कौन होते हैं चुनी हुई सरकार के आदमी को सिर्फ डाउट के बेसिस पर उसको जेल भेज दीजिए और 30 दिन पूरा करने के बाद उसकी सरकार बर्खास्त कर दीजिए और अपने गवर्नर को मुसल्लत कर दीजिए। ये तो इस देश को लूट के बर्बाद करने की बात आप कर रहे हैं। इसका मतलब कि भारत के संविधान को डॉक्टर बाबा साहब ने जो लिखा है वो आप मनुस्मृति में बदलना चाह रहे हैं। सर आप यही चाह रहे हैं ना सर? ऐसा अगर देश के संविधान पर सर, अगर देश के संविधान पे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अगर इनको विश्वास है तो कोर्ट में कन्विक्ट होने दो ना। आप तो बिना कन्विक्ट के उसकी सरकार लूट रहे हैं। अगर ये आप लूटने का ड्रामा कर रहे हैं, उदाहरण तो आपके सामने है सर। मोदी साहब का कहना है कि प्रशासन, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 50 घंटा जेल में बीताता है तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। अगर सरकारी नौकर सस्पेंड हो जाता है, उसको गद्दी पे बैठने का हक नहीं है, तो सीएम को बैठने का हक नहीं है। 125 केस ईडी के थ्रू अपोजिशन के लीडरों पर हुआ है, 125 में से 123 फ्री आ गए। यानी आप बोगस ही काम कर रहे हैं ना। अगर मैंने चोरी की, पार्टी नेता ने चोरी की, देश की किसी जनता ने अगर किसी चीज पे चोरी की और वो साबित हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, आप उसको फांसी दे दो, जो आप चाहो करो। लेकिन आप किसी को किसी संस्था के माध्यम से जबरन उठा के बंद कर दो। साहब ये तो वहां दिखा था। अब मान लीजिए कि मेरा चेहरा किसी से मिलता है और उस डाउट पर आपकी पुलिस मुझे बंद कर दे 30 घंटा और मैं किसी संवैधानिक पद पे बैठा हूं तो आप मेरी कुर्सी ले लेंगे? ये कौन सा नियम है देश में? और दूसरी बात क्या है निजाम साहब, ये देश में जो है डेमोक्रेसी खत्म करने की जो निजाम साहब कानून भी है ना, की है, ये उसका नतीजा है। निजाम साहब कानून भी तो है। कानून क्या है? सर, कानून, नहीं, पूरी बात सुन लेना। अरे पूरी बात सुन सर। आप निर्दोष हैं जब तक के कोई कोर्ट आपको दोषी नहीं ठहराता, ये कानून। आप निर्दोष हैं जब तक के कोई कोर्ट आपको दोषी नहीं ठहराता, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज देयर टिल सच टाइम एज यू आर कन्विक्टेड। तो उसके तो ये कानून जो है, मुझे ऐसा लगता है ये 30 दिन वाला कानून जो है वो तो एक बेसिक लॉ जो है एंग्लो सैक्सन लॉ का जो हम फॉलो करते हैं इस देश में, उसके खिलाफ जाता है कि भाई सर ये सीधा सीधा आप ऐसे सोचिए ना सर कि इस देश की कौन सी अदालत है जो 30 दिन में कोई निर्णय दे रही है? नहीं 30 दिन में कोई निर्णय दे रही है क्या?
और अगर मान ये लीजिए जो ईडी ने अपराध अरेस्ट करके किया, ये बैठे हैं सारे, अरे इनके निजाम केंद्र में साहब, मंत्री निजाम दर्जनों साहब, पर अगर आपको मुकदमे पीएमएलए में हैं, अरेस्ट कर सबकी लिया, रेट बढ़ाई जा रही है। अगर आपको पीएमएलए में अरेस्ट कर लिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर आपको अरेस्ट कर लिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो आप 6 महीने के लिए गए सर। तो वही तो मिनिमम आप अपनी 6 सरकार खत्म कर दीजिए। मतलब यही हुआ ना, अभी आप जो है अपने गवर्नर के माध्यम से सरकारों के ऊपर अध्यादेश पास करने वाली चीजों को भी आप लक्ष्य कर रहे हैं कि हम तो नहीं आपका मानेंगे। कहना है सरकारी नौकर भी सस्पेंड नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकर भी सस्पेंड नहीं होना चाहिए, आपका कहना है सरकारी नौकर 50 घंटे के ऊपर सरकारी जेल में है नौकर तो का उसको सिस्टम सस्पेंड है, किया जाता सुनिए है। आप, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकर अगर घूस लेता है, करप्शन करता है, अगर वो 2 दिन के लिए बंद होता है, तीसरे दिन वो सिर्फ सस्पेंड होता है। सस्पेंड, उसकी ये तो सरकार सस्पेंशन ही है नहीं ना। होती। सुनिए आप, बोले सरकारें सस्पेंशन है, आप फंक्शन नहीं कर सकते। सरकार गिरती है, उसकी सरकार आप लूट रहे हैं, आप डकैती कर रहे हैं, डकैती ये सरकार लेके हम दूसरे को देंगे। नौकरी में तो वो जितना दिन नौकरी करने के लिए कहने का बाहर मतलब ये रहेगा, हुआ। और जब वो जीत कर आएगा तो वो सारा पैसा सरकार को उसका चुकाना है। कल आप अगर गवर्नमेंट जर्नलिस्ट रहेंगे और आप सस्पेंड हो गए, 5 साल बाद कोर्ट ने आपका फैसला दिया, तो सरकार 5 साल का पूरा पैसा भरकर आपको देगी, और जितना दिन आप सस्पेंड रहेंगे 50 उतना दिन की आधी सैलरी आपको मिलेगी। 50%। तो सरकारी कर्मचारी और लूटी हुई सरकारें, दोनों में बहुत फर्क है। ये हमें ना सिखाएं बीजेपी वाले। बोलो बोलो मुकेश गांधी साहब, क्या मोदी साहब ने इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, मोरालिटी को अपहोल्ड किया है? बोले मैं अपने गर्दन रखता हूं, अगर मुझ पर केस हो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, मुझे भी हक नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। बोलिए गांधी साहब। देखिए, ये जो कानून आया है और जो कानून पास किया गया है, लोकसभा में भी मेजोरिटी से और राज्यसभा में भी पास हो गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा वजूद कहाँ है। पास हुआ है सर? क्योंकि JPC कहाँ पास हुआ है सर? ये नहीं पास हुआ। It has gone to a joint parliamentary committee. पास हुआ है? नहीं, पास नहीं हुआ सर। उसके सामने मुकेश गांधी साहब, पास नहीं हुआ है। क्या झूठी बात करते हैं आप, गांधी भाई? Sir, it has gone to a parliamentary It committee. is with JPC. जेपीसी Sir, it has gone to a JPC joint parliamentary को committee. भेजा है discussion अभी पास के नहीं लिए। हुआ है सर। नहीं, ज्वाइंट discussion पार्लियामेंट्री के लिए कमेटी भेजा में है, पर ये भेजा है कायदा discussion पास हो को। गया, आप वैसा ही सीधा-सीधा है। झूठ बोल ये देते हैं। ऑपोजिशन के क्या आप बहुत RSS में विरोध कब के थे आप? कारण नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बहुत न्यूट्रल है, इसलिए उन्होंने जेपीसी में भेजा है। ये कायदा देखिए, पास अब हुआ आप है, फिर बदल गए। पर उनका इन्वेस्टिगेशन ऑपोजिशन के किया तो जेपीसी में भेजा, तो ये ऑनेस्टी है ना। लेकिन मुकेश गांधी साहब, आपसे एक सवाल इस पूछता तरह हूँ। से वकफ का मुकेश गांधी साहब, एक ऐसा सेकंड, ही एक भेजा सेकंड। था। सर, वकफ तो को वो आप wrong इसमें ना लाएं। ये Let's कायदा not talk अच्छा about है, वकफ। इतना मैं सपोर्ट Sir, करता that's a हूं। normal procedure. That is a normal procedure. Whenever there is a dispute, Yeah. bill is always sent to the joint parliamentary committee, and its Yeah. recommendations are always taken on board. But I would like to ask you one thing. Sir, Satyendra Jain was the health minister of New Delhi, Delhi government. उनके खिलाफ PMLA का केस किया गया। ओरिजिनल FIR जो था वो CBI ने फाइल किया। Now point is this, please understand. ED can only investigate after an agency has filed an FIR, either the police or CBI. उसके बाद ED आती है। तो ED ने उनके खिलाफ PMLA का केस डाल दिया क्योंकि CBI इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनको। सर, वो 2.5 साल जेल में रहे हैं। 4 साल उनके खिलाफ केस चला है, और अब CBI सुप्रीम कोर्ट में आके कहती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और सी समरी फाइल कर दी। थैंक यू वेरी मच। सो सुप्रीम कोर्ट हैज एक्विटेड मिस्टर सत्येंद्र जैन। सर, वो जो 4 साल उनके गए और जो उनकी सेहत खराब हुई और जेल में जो उनकी हालत खराब हुई, उनके परिवार वालों की, उनके सारे अकाउंट फ्रीज हो गए, ना जाने क्या कुछ हुआ, सर उसका खामियाजा कौन भरेगा? आप बताइए ना। 2.5 years the man was in jail, sir. Sir, this is not done. How can देखिए you do राजीव that? जी, आपकी बात बहुत सही मायने में मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि एक बात तो सही है कि ईडी, सीबीआई और ये सारी संस्थाएं बहुत न्यूट्रल रहनी चाहिए I agree, sir. और बायस नहीं होनी चाहिए, और जो भी केसेस होता है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे दोस्त ने, निजामुद्दीन ने जो बताया वो बात भी सही है कि इतने सारे ईडी के होने के बाद में इतने सारे लोग फ्री हो गए और बाद में 2-4 लोगों को खाली आपने पकड़ा, तो ईडी को भी अपना रोल, बीजेपी को भी क्लियर Sir, करना it's laziness. पड़ेगा। Let me tell you this. क्योंकि It's convenience and laziness. ये गलत चल रहा है। दुरुस्त बात। इसके साथ में मैं सम्मत हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बीजेपी में आ जाता है उसको वॉशिंग मशीन में साफ कर देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। जो गिल्टी है वो गिल्टी को पकड़ो, पर ईडी को अगर आप इस तरह से गवर्नमेंट यूज करती रहेगी तो
આ વખતાને મેં અમારે यहाँ કહાવત है ગુજરાતી में વાઘ આવ્યો અને વાઘ જ્યારે આવે ત્યારે ભાગી જાય લોકો અને વાઘ ખાઈને જાય माने हम कहेंगे कि हमने फोर्स किया, ईडी ने रेड किया, ये किया वो किया, और बाद में जब कुछ निकलता नहीं है तब लोग पब्लिक भी हैरान हो जाती है कि ये क्यों हो रहा है। सर क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूं सर। इनको गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल क्लियर करना ही पड़ेगा, ऐसा पूजा मिश्रा जी, मत है। you have not spoken on this. I would like you to speak on this, ma'am, before we go. पूजा मिश्रा जी, इस मैटर के ऊपर सर अगर सर आप एक बोले- एक मिनट बहन, एक मिनट, मैं जी, बोलिए, ये बोलिए। कहना चाहता हूं जी सर, अभी कल जो है हमारी राज्य की एक बड़ी पुलिस अधिकारी जो रिटायर हुई है, मीरा भोनवरकर, जी वो पूरी दुनिया में फेमस है। जी है कल पूना में जो लेक्चर उनका हुआ है उससे सरकार को समझ लेना चाहिए कि वो कितनी घटियागिरी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट और रेलवे ब्लास्ट दोनों के एक्यूज कैसे बच गए, कैसे उनको छुड़ाने का काम हो गया, ये पूरे देश के लिए शर्म का विषय है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कह रही She should go to है, court. ये कल ये मीरा बोरवनकर का बयान है। Why didn't she और go to आज court? सारे मैं मुकेश भाई से बहुत अच्छे से सहमत हूं। मुकेश भाई की एक बहुत अच्छी आदत है, जो गलत है वो उसको गलत कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो चीज गलत है वो गलत है। जी। मैं उनको एज ए नागरिक सल्यूट करता हूं मुकेश को, क्योंकि वो सच बात करते हैं। तो सच बात बीजेपी को भी करनी चाहिए मुकेश भाई। मुकेश लेकिन भाई यहाँ पर मैं बीजेपी I would को like भी to ask समझाओ पूजा मिश्रा आप। जी। Sir, I would like आपके to साथ ask- पार्टनर है यहाँ, आप उनको समझाओ कि भाई सच बात करो, जनता जी, आपके जी, साथ जी। है। 17 साल हो गए आपने चार्ज लगाया था सनातनी यानी जो सैफरन टेररिज्म का 17 साल से आप वो मूवमेंट चला रहे हैं। 17 साल से आप सनातन धर्म को आप आरोपी बना रहे, बोले सैफरन नहीं, भगवा नहीं, सनातनी आतंकवाद है। 17 साल हो गए निजामुद्दीन जी। बीजेपी को आपका पूछना है कि 17 साल से आप ये टैग लगा रहे हैं भगवा आतंकवाद, भदवा आतंकवाद, वो पर्दाफाश हो सर गया। ये आतंकवाद का विषय जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मिस्टर सिंह, आप बताइए कि भारत सरकार के गृह सचिव थे, जी, ये जी, उन्होंने जी। लगाया, आरएन सिंह। निजामुद्दीन राइन और कांग्रेस ने नहीं लगाया। आरएन सिंह, ये आरएन सिंह। दिग्विजय सिंह। BJP नहीं आरएन सिंह, आरएन सिंह। दिग्विजय मिस्टर सिंह, सिंह, चिदम्बरम, मिस्टर सुशील सिंह। कुमार शिंदे। आरएन सिंह नाम था सर, उनका। ये उसके बाद में बात आई। आरएन ये सिंह नाम तो था आर- उनका नाम। आर्यन सिंह उस जमाने जी। में गृह सचिव थे। जी, वो होम और ये सेक्रेटरी उनकी हुआ देन है जो दिग्विजय सिंह BJP जी के ने साथ- किताब निकाला, लॉन्च किया था आरएसएस बिहाइंड 2611 मुंबई में। किया है ना मैंने पूरा। आपको सत्यता की एक झलक दिखाई कि अधिकारी क्या कह रहा है। नेता की बात छोड़ दीजिए, जो संविधान की क्यों? शपथ लेकर ऐसा नहीं सरकारों में होता है। झूठ बोलता हो तो उस पर दिग्विजय क्या सिंह को बयान? छोड़ दो। तो ये आप तो दिग्विजय हमने सिंह नहीं मना ही कहा। कर ना। हमने कभी नहीं कहा कि देश में सफरन आया है और हम हिंदू आतंकवाद पैदा कर रही है, सुशील हमने कभी कुमार नहीं कहा। शिंदे का और शरद पवार का कितने स्टेटमेंट है सर उसके सर ऊपर? ये पवार का नहीं है। बात नहीं है। मुकेश चिदम्बरम। भाई तब आप शरद शरद पवार जी पवार का के साथ थे, तब आप शरद पवार की पार्टी के सीनियर नेता नहीं, थे पार्टी में जब थे, ये मैंने बयान पार्टी आया। में से रह सर करके सुनो उनका ना, शरद पवार का तब भी opposition किया है। सर सर, आप उस वक्त with शरद your पवार permission, की पार्टी में gentlemen, सीनियर नेता थे मैं शरद पवार और के उस साथ में वक्त सहमत सुनो, नहीं सर था आप उस सुन वक्त तो भी लो, और आज भी। आप सुनो, उसमें मैं क्या आपकी बड़ी बात बात सुनने है? को तैयार हूं। हमको कुछ लेना, तब भी हमको कांग्रेस और politics से शरद कोई पवार रोटी ने नहीं ये बात कमानी नहीं है। कही थी। ये बात भारत सरकार में जो लेकिन इनके इसको गृह रिपीट मंत्री किया थे, था ना, गृह सर। सचिव, सुशील कुमार उन्होंने शिंदे ये जी कही ने- और वे वो लेके आए। सर, सर, ये सर, शरद सर, पवार सर। तो बहुत बाद में आए। निजाम और साहब, उस वक्त शरद पवार की निजाम पार्टी साहब, में इस पे आप बहुत सीनियर बड़ी नेता बहस हो जाएगी। एक मिनट, आप लोगों ने कहा था सैफरन टेरर, जहां तक के अब्दुल रहमान अंतुले साहब जो उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, उन्होंने बाहर आकर के कहा था 2611 के बारे में, लगता है ये आरएसएस का काम है। He is on record. तो सही I बात still है, have सर, that footage. अभिनव- I अभिनव still have के that footage. जो But हुआ, anyway, सीमा नंदन listen, और के listen, साथ I don't want to go कि into हमने किया। that. सर, वो मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता. That is a diversion. Let me go to पूजा मिश्रा जी. पूजा मिश्रा जी, ये जो 30 दिन का रूल है और उसके पहले जो ईडी वगैरह की बात हुई, it is my opinion, I would like your opinion on this. क्या है कि पीएमएलए से आप मेहनत करने 180 से days. आप मेहनत करने से छूट जाते हैं। क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इट इज वेरी कन्वीनियंट एंड दिस शुड, आई थिंक द बीजेपी एंड एवरी पार्टी शुड टेक नोट ऑफ दिस। पहले क्या होता था, यहां पे जैसे क्राइम इन डिटेक्शन है ना मुंबई में, इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कहा जाता था। इतनी मेहनत करते थे, एक सबूत कलेक्ट करते थे, एक एक केस को ऐसे बनाया करते थे कि 20 साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है, क्राइम एंड डिटेक्शन मुंबई पुलिस का अगर केस बनाया हुआ है, मजाल है कि कोई डिफेंस लॉयर उसको तोड़ सके, मुजरिम को सजा होती थी।
आज की तारीख में क्या, इट इज वेरी कन्वीनियंट, सीबीआई का केस हो और स्पेशली ईडी का केस हो, टीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें उठाया, अंदर डाल दिया आदमी को, यू हैव द राइट टू अरेस्ट विदाउट एनी प्रूफ। डोंट यू थिंक दैट राइट शुड बी टेकन अवे? अरे भाई पहले उसके खिलाफ सबूत कलेक्ट करो, कलेक्ट एविडेंस, आफ्टर दैट यू अरेस्ट हिम, बट हियर यू फर्स्ट अरेस्ट एंड देन लुक फॉर एविडेंस। पूजा मिश्रा जी बताएं। और उसमें एक क्लोज पहले होता था कि जैसे आपने कहा ना कि लॉ है, हमारे देश में लॉ है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर अगर आप पीएमएलए एक्ट के तहत आ जाते हैं ना राजीव जी, तो यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, उसी के तहत आप उठा करके जेल में रख लेते हैं। क्योंकि अगर उनको सच आगे उसी के तहत उठा लेते हैं, क्योंकि अब आपको साबित करना है कि आप इनोसेंट है, आप गिल्टी नहीं है। और इसी चीज को जो है, अब मैं पावर अब्यूज कहूंगी, सरकार पावर अब्यूज करते चले आ रही है। आप सोचिए कि इनको अचानक से ये, हालांकि नियम होता है, इससे पहले भी कई सारे बिल आई हैं, कभी कांग्रेस लेकर के आई है, कभी भाजपा लेकर के आई है, और हमेशा एक पार्लियामेंट्री कानून नहीं है, पर एक जो है हम कहते हैं ना संसदीय परंपरा है कि हम पहले अपोजिशन के साथ में बिल को प्रेजेंट करने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं। इस बिल के मामले में क्या हुआ कि 19 अगस्त को अमित शाह जी ने सेक्रेटरी जनरल को बस लेटर लिख दिया कि हम ये बिल पेश करेंगे, और ये सडन बिल आ जाता है। अब मेरी समझ पता नहीं है कि नहीं है, उतनी तक आप जितना एक्सपीरियंस नहीं, पर मुझे लगता है कि ये बिल लाने का बस ये है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, ये वेट भी कर सकते थे। इसको जो है शरद जब आती जो है जो शरद संसद चलती उस वक्त कर सकते थे, संसद के समय में, पर नहीं किया इन्होंने इसको जो है जस्ट ये मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले ही प्रेजेंट किया, कि उनको पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आना है। और आपको पता है साउथ इंडियन के 2 कैंडिडेट, एक गवर्नर जिसने जो है भाजपा की कृपा पात्र पाई हुई है, दूसरे जो है आ रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आ रहे हैं। तो इनको लगा कि जो नीतीश एंड नायडू हैं, इनको पर पहले से प्रेशर बना दो। अगर ये बिल आज नहीं पेश हुआ होता, या जो है बाद में जब आती, बाद में भी कर सकते थे, आपको एक दिन पहले पेश करने की जरूरत ही क्या थी, जब खत्म हो रहा था। ये आपको पता है इसमें डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अमित शाह का आरोप है टैक्टिक्स चल रहा है कि फाड़ना ठीक था। पूजा मिश्रा जी, डरे रहे वो, ऑपोजिशन बिल फाड़ दिया इन द पार्लियामेंट, लोकसभा में बिल फाड़ कर अमित शाह जी के क्या ऊपर फेंक दिए। तो क्या करें आप, देखिए एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है। क्या ये कोई तरीका है क्या ऑपोजिशन का बिल फाड़ देने का? लॉजिकल आंसर देना चाहिए। नहीं, आप माइक तोड़ सकते हैं, आप माइक तोड़ सकते हैं, लेकिन जो है अपोजिशन बिल नहीं फाड़ सकता है। आपको याद नहीं है 2006 में आपने माइक तोड़ा था जी, तोड़ा या तो बिल ही फाड़ा अरे गया, सर, माइक तोड़े थे, मत जाओ मुकेश भाई, आपने सदन में माइक तोड़े थे। जब इतनी आप बार बीजेपी ने गलत किया बोलेंगे और काटने कुछ और चले जाएंगे, इसलिए वो बहस में मत जाओ। आप सोचिए कि जो है अभी 95% सिंस 2014 टिल 2025 95% of ED and CBI cases are imposed over the opposition leaders, and the conviction rate of out of 100 is 0.5, even less than 0.5. It's about 0.478. हम हमको से काउंट करते हैं कि 0.48 हो गया, अगर उसको राउंड ऑफ कर दिया तो 0.5 हो गया। तो इतने कन्विक्शन कम रेट से आप कह रहे हैं कि हम जो है लीडर्स को बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि आपका क्या है, पीएमएलए एक्ट लगाइए, लेकर सीबीआई जाए, एफआईआर दर्ज करे, ईडी चली जाए, लेकर के चली जाए। हेमंता बिश्व शर्मा, मैं हेमंता बिश्व शर्मा को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उनको पर 2014 में आप सोचिए कि सीबीआई पूछ रहे थे सवाल, सीबीआई को उनका केस हैंडओवर होता है, और जैसे सीबीआई को हैंडओवर होता है, हेमंता बिश्व शर्मा चले जाते हैं भाजपा में जाने के बाद में उनसे सीबीआई एक बार भी प्रश्न नहीं पूछती। अभी उन्होंने असम का इतना बड़ा सारा लैंड जो है एलोकेट कर दिया, दे रहे हैं, आप बनाओ, आपको इस्तेमाल करना है। उसके पहले ही जो है उनसे लैंड से प्रश्न पूछा जा रहा था कि इस कॉलेज को लैंड दिया जा रहा है, इस कॉलेज के लैंड के साथ में जो है छेड़खानी हो रही है, आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री कहते नहीं, ये हमारे कार्यभार से बाहर है, क्योंकि ये कॉलेज का इंस्टीट्यूट का है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पता नहीं पूरे नियम बता लेंगे। और जब कहा खुद की बात आई तो ये लेकर के इन्होंने जा करके उसको लैंड को दे दिया हुआ है। तो ऐसे लोगों को भाजपा बचाने का काम करती है। अजीत पवार, अभी आप शिंदे को ही देख लीजिए, भाजपा क्या कहती थी, चक्की पीसिंग, अब जो है मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। तो ये पीएमएलए, ये जो बिल लेकर के आ रहे हैं, ये बिल लेकर के इसलिए आ रहे हैं ताकि ये पावर अब्यूज अच्छी तरीके से कर सके, ये बताए कि पावर अब्यूज होता क्या है। इंदिरा गांधी जी ने कानून लेके आया था कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरा मुकेश जी से एक निवेदन है कि वो सरकार को, प्रधानमंत्री को लिखे कि झूठ बोलने वाले नेताओं का रिकॉर्ड रखा जाए और जैसे सरकार बने उन्हें तत्काल जेल में डाल दिया। डॉक्टर मल्लिक, उसके लिए इंदिरा गांधी जी ने बिल लेके आया प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने का। जेल भेजने का अभी मल्लिक जी, डॉक्टर मल्लिक, पूरा देश सुधर जाएगा और आप डॉक्टर मल्लिक,
कि एक मुकेश मोदी जी कह रहे कि मैं हूं कि मैं अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूं, कोई भी चीज है। इंदिरा गांधी जी ने बिल ला के प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर दिया। डॉक्टर अविरल मलिक, ऑनेस्ट लीडर थे जिन्होंने मलिक जी कहा था कि झूठ बोलने वाले नेताओं को जेल भेजा जाएगा। आप एक बिल लाने के लिए बात रखिए ना सर। आपके अच्छे दोस्त हैं अमित शाह, आप उनसे कहिए कि एक बिल पास कर दे पार्लियामेंट में। अरे थोड़ा डॉक्टर मलिक को बोलने दो। निजामुद्दीन जी सांसद आपको दुआ देंगे, आप बोल दीजिए। डॉक्टर मलिक बोलिए आपने बोला बिल फाड़ने के विषय पर पूजा जी कह रही थी कि अगर आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, हम बिल नहीं फाड़ सकते क्या? मैं समझता हूँ, देखिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, और जिस तरीके के कृत्य किए गए हैं ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी नहीं है। गजब बात करते हैं। बोलिए। नहीं देखिए, ये जिस प्रकार की बात आपके द्वारा की गई थी, मैं तो समझता हूँ, खैर आपके विषय पर पहले नहीं कहना चाहूंगा। ये यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए भाई साहब आराम से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। आप ही के विषय में मैं आ रहा हूँ। आपने एक चीज कही थी, श्रीलंका बना देंगे भारत को। देखिए इस भूल में कतई मत रहिए कि भारत को आप श्रीलंका बना देंगे फिर आप और भारत से मारपीट के भगा देंगे। हमने ये उदाहरण दिया कि ये देश में हो सकता है। परेशान हो रहे हैं, गड़ा उल्टा है। देखिए आप श्रीलंका भारत को मत बनाइए। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं, भारत को श्रीलंका बनाने का सपना मत देखिए। आप हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन। लेकिन डॉक्टर मलिक, झूठी बात है। लेकिन डॉक्टर मैंने मलिक, नहीं कहा। एक मिनट डॉक्टर मलिक, झूठी बात क्यों करते हैं मलिक साहब? पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। अरे निजाम साहब रुकिए तो सही, ऐसा झूठी बात अरे क्यों भड़क रहे हैं साहब? आप आराम से रहिए। मुकेश भाई सच बात करते हैं, उनके हर आदमी बात सुन रहे हैं। निजाम साहब एक मिनट। डॉक्टर मलिक आपको, चलिए मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने कहा आप उदाहरण दे रहे थे, उससे जोड़ साहब आपके साथी हैं मुकेश भाई भी आपकी सरकार में, वो तो नहीं झूठ बोलते, वो तो जो गलत रहता है फौरन एक्सेप्ट करते हैं। साहब एक सेकंड, और आप सफाई देने में झूठी बात करते हैं। डॉक्टर झूठी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब सुन लीजिए, आप बीच बीच में बोल रहे हैं, इसलिए आप बीच में मत बोलिए। भाई साहब एक मिनट, बीच में मत बोलिए इतना। दिखा रहे हैं आप क्यों? सर डॉक्टर मलिक को बोलने दें प्लीज। बीच में तो मत बोलिए कम से कम भैया, बीच में बिल्कुल। देखिए मुझे एंकर के द्वारा अगर बोलने का मौका दिया गया, कम से कम 2 मिनट सुन लीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बीच में कूद जा रहे हैं। देखिए आपने कहा आप उदाहरण दे रहे थे, ठीक है, आपने उदाहरण की बात की कि मैं केवल उदाहरण दे रहा था, लेकिन इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूं सही नहीं है, और उससे तुलना करना या उसका उदाहरण देना भी मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आप सम्मानित नेता हैं और उसके साथ साथ विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप कम से कम श्रीलंका की परिस्थितियों से भारत को ना जोड़िए, और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारत का, तो भारत किस प्रकार से आगे बढ़े मजबूत। डॉक्टर मलिक, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग सर, बिफोर वी लेट यू गो। Sir, you must thank the Congress party and the opposition. धन्यवाद बनता है सर आप लोगों का, क्योंकि ये पीएमएलए का कानून जो अभी लागू हुआ है ना सर, ये कांग्रेस की देन है। ये आदरणीय सम्मानीय चिदम्बरम साहब ने लेकर के आए थे, उसके पहले इतना सख्त कानून नहीं था। ये आपको विरासत में मिला है कांग्रेस से, याद रख लीजिए। You have not brought this in. This has been brought by them. सर सीधी बात है। आज क्या है कि जो बीजेपी कर रही है ना, वेरी फ्रैंकली, आप लोगों ने कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है, और कांग्रेस जो गलत काम करती थी वो आप लोग कर रहे हैं अभी, और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही आपको विरासत में दे दिया है कि भाई ये लो हमारे खिलाफ करो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सो ऑल आई एम सेइंग टू यू इज दिस सर, डॉक्टर मलिक, मुकेश गांधी साहब, निजामुद्दीन रईन साहब एंड पूजा मिश्रा जी, all political parties have to get together and work for the country. और ये पीएमएलए का जो कानून है ना, जो which turns the entire thing upside down, you are guilty till proven innocent. हिंदुस्तान का लॉ क्या है मलिक साहब आप जानते हैं, you are innocent till proven guilty. ठीक है सर, आप निर्दोष हैं जब तक कि आप दोषी साबित नहीं होते। पीएमएलए में उल्टा हो जाता है, आप दोषी हैं जब तक आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करते। सर उसको निकालिए, जो पुराना कानून है जो हर एक पे अप्लाई होता है, इस पे अप्लाई होना चाहिए। ये कानून इसलिए लाया गया था कि ड्रग स्मगलर्स, टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, ड्रग्स से जो पैसा आता था, जो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता था, उसके लिए पीएमएलए लाया गया था सर। आप तो दूध वाले से लेकर के, कोयले वाले से लेकर के, कोयले की टाल वाले से लेकर के दुकानदार पे हर एक पे लगा रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये गलत है। I want to ask finally one word, गांधी साहब, जो धनखड़ साहब चुप क्यों है? ये सब पार्टी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं धनखड़ साहब कहाँ है, धनखड़ साहब चुप क्यों है? निजामुद्दीन जी हंस रहे हैं, पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर अविरल मलिक सत्यपाल मलिक जी का भांजा है।
तो बोलिए गांधी साहब, डॉक्टर धनखड़ साहब चुप क्यों है? कहां पर है धनखड़ साहब? इज ही सेफ? सर ये तो मुझे कॉन्फिडेंशियल ये विषय इसको है, मालूम जाने नहीं दो है सर। मुझे, आप जो पूछ रहे हो सर ये कॉन्फिडेंशियल है, मुकेश गांधी जाने जी को दीजिए, कैसे मालूम पब्लिक पड़ेगा? डोमेन में मत ले आइए। ये मुकेश गांधी जी को कहां से मालूम पड़ेगा? जो मैंने सुना है वो तो आपने झुंझुनू में डॉक्टर मल्लिक जो भांजा है सत्यपाल मल्लिक जी के, सत्यपाल मल्लिक जी पे आप बात नहीं करेंगे। धनखड़ साहब कहां पर है? डॉक्टर मल्लिक बोलिए सर। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का, तो धनखड़ जी किस प्रकार से बीमार हुए, बीमार होने के पश्चात उन्होंने अपने आधार पे उनके द्वारा मैं समझता हूँ त्याग पत्र दिया गया, उस विषय पे किसी रूप में कहने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए पूजा जी हंस रही हैं, तो ये बीमार होने पे हंसते हैं, ये इस प्रकार की बात समाजवादी अरे पार्टी के मेरे लोग कर रहे भाई हैं। बीजेपी वालों को लेकिन I must congratulate you, Dr. Malik. Very good article. एकदम Very good article बढ़िया से। on सत्यपाल मलिक जी। जब वो रिजाइन करके एक निकले मिनट, तो निजाम सत्यपाल साहब, एक मलिक मिनट। जी को गवर्नर से हटा दिया गया, उसके लिए एक प्रवक्ता को 6 साल के लिए जो भाजपा से निष्कासित किया गया, क्योंकि उसने धनखड़ जी के समर्थन में और सत्यपाल मलिक जी के समर्थन में एक एफबी पोस्ट किया था। जी, जी। हरियाणा का प्रवक्ता था, उसको जो है भाजपा ने 6 साल के लिए निकाल दिया कि कैसे आपने उनके समर्थन लेकिन में अभी पोस्ट कर दिया। अभी डॉक्टर आप अभिनव कह रहे मलिक ने हैं, सत्यपाल ले मलिक रहे की हैं, तारीफ करी। क्योंकि आप कह रहे हैं ये सबको पता है। अगर ये जो है सबको सर, पता है कि उन्होंने दिए, मैं कहता- उनका भी सर, ये ट्विटर अकाउंट कौन confidential चला रहा विषय है? है, जाने यही दीजिए। बता दीजिए कम ये से कम उनका ये एक्स विषय- अकाउंट कौन चला रहा है? धनखड़ जी सर, स्वस्थ जो रहें, मोदी ये हमारी जी भी ने कामना धनखड़ है, को निकाला वो है, स्वस्थ देखिए, जहां रहें, तक क्योंकि विषय बहुत सारे सत्यपाल राज वो मलिक खोलने ज्यादा वाले होता है, हैं। मेरे ग्रैंडफादर रहे, जिस प्रकार से उनके द्वारा काम और किया जो गया, गद्दारी देश के हित में करता है, निरंतर वो बीमार फैसले है लिए या गए। है कि नहीं है, 5 उसका राज्यों में कोई गवर्नर मतलब रहते हुए नहीं है। उन्होंने निरंतर फैसले लिए राष्ट्र हित में, और 370-35 से हटने की बात हो आप या उनके अहम हित योगदानों में की एक बात पोस्ट हो। नहीं कर पाए। करे दूसरा एक किसने बोला प्रवक्ता 6 साल के नहीं? लिए पूरा आर्टिकल निष्कासित लिखा हो है गया। मैम। डॉक्टर मलिक ने देखिए, वो सत्यपाल जहां मलिक तक जी की जानू तारीफ के में पूरा जो आर्टिकल लिखा प्रवक्ता है। जो राजस्थान बीजेपी के थे, उनके विषय पे शायद पूजा जी बात कर रही है, उनके पहले से कुछ और इश्यूज थे, उस पे भी एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेना चाहिए, केवल इस पर्टिकुलर विषय के आधार पे नहीं, और भी कुछ इश्यूज थे, और पहले से पार्टी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो उसको देख लेना चाहिए। मैं समझता हूँ पूजा जी को सही रहेगा। जी, और thank जहां you तक thank मेरे you very much ग्रैंडफादर के everybody। विषय पे है, उनके द्वारा निरंतर जो फैसले लिए गए वो सबके मध्य में है, और आज वो हम सबके बीच नहीं है, तो उस विषय पे मैं But he नहीं was a कहना very good friend of चाहूंगा। ours। और जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी बहुत उन्होंने अच्छे निरंतर मित्र हुआ फैसले करते थे। लिए, वो सबको मालूम है। 370 और कश्मीर में शांति या फिर आतंकवाद के खिलाफ फैसले लिए गए, तो वो मैं समझता हूँ सर भी थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर मलिक, थैंक यू वेरी सर मच। पुलवामा पे जो फैसला उन्होंने लिया था वो भी बता दीजिए। चलिए वो अगली बार नहीं, सर। देखिए निजाम वो साहब, आज हम thank you। सबके बीच में नहीं है, और मेरे लिए बहुत निजी रूप से दुख की बात है, That's तो right। उस विषय पे मैं पॉलिटिक्स के विषय पे मैं उसमें नहीं बोलना चाहूँगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुकेश गांधी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। Thank आप you। चारों लोगों को आज शनि नमस्कार। अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you। नमस्कार। Well, that's it. That's all we've got to you in tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. That's it. As you can see, there's not been any agreement so far on any subject per se. Notwithstanding the fact that everybody agrees that the law of India says very clearly you are innocent till proven guilty. But according to the PMLA, you're guilty till proven innocent. I hope to God that the Supreme Court actually goes back to the old law and tells the Directorate of Enforcement, hey, listen, this is your charter. Why don't you stick to it? Get rid of terrorism, because Pradeep ji, that's where the focus should lie. ये terrorism हो कैसे रहा है? क्योंकि आपने सर ईडी के पास लिमिटेड मैन पावर है सर. You can't go after this and everything. वो बाकी जो पुलिस कर्मी है वो कर लेंगे, सीबीआई हो गई, पुलिस हो गई, ईओडब्ल्यू हो गई, बाकी सारी जितनी भी संस्थाएं वो कर लेंगी. They must go after narco terrorism. That's it. और ये terrorism खत्म नहीं हुआ है सर. जम्मू एंड कश्मीर में इट्स ओनली अ लल. अभी हाल ही में दोबारा दे ट्राइड टू इन्फिल्ट्रेट अ कपल ऑफ गाइज इनसाइड अगेन. तो मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई का, मैक्सिमम जो पॉलिटिकल केसेस है इट्स ऑन द ऑपोजिशन. दैट्स राइट. 99% of the cases are All on the opposite, leaders, which is sad. and they go to jail without any excuse, no nothing for 6 months. There's nobody answer. Even the courts don't take up the matter. Before Sanjay Raut has been the only exception. The 3 महीने में बाहर निकले, but his case was clear because बार PMLA court was asking them, भाई give us the proof. What's the next hearing? Give us the proof. Next hearing. What is the evidence? Next hearing. करते so the Mumbai PMLA court has got courage. Let's be very clear. The PMLA judge over here must be having a lot of courage. Otherwise, PMLA court judges usually go only by what the agency tells them, and they say, भाई ठीक है, I can't grant you bail. तो जब तक 3 साल होते नहीं है, तब तक आदमी अंदर रहे.
That's what usually happens because maximum punishment is 7 years, so 3.5 years. एक बार आदमी जेल में काट लेता, भाई आधी सजा तो काट ली, अब चलो बाहर चलो. That's what happens. CJI ने open court में he did pull up this ED counsel and the ED officers, but that's just an observation. That's an observation. Nothing on record. Now, if you can in the open court pull up the enforcement directorate and tell them that I know what you have done in Maharashtra. मुंबई में आपने क्या किया मुझे मालूम है, महाराष्ट्र में क्या किया मालूम है. Don't make me open my mouth. Yes. So why is the mouth shut? Let us be very frank about it. He's a CGI. He should speak. अगर आप बोलते हैं कि don't make me open my mouth, why should your mouth be closed? Why should your mouth be shut? You are the CGI. We expect you to open your mouth. Let's be very clear. And number two, he also said you cannot be a political pawn. That's what he told the agency. Exactly. That's what he said. But in any event, you see, it's very difficult for a government to relinquish power. Very difficult. जब किसी सरकार के पास कोई पावर आ जाती है ना, किसी भी चीज की, especially अरेस्ट की, और ईडी का नाम सुनते सन लोग डर जाते हैं ज्यादातर, especially पॉलिटिशियन जितने हैं, तो वो सरकार अपने हाथ से क्यों जाने देगी प्रदीप जी? It is going to be very difficult. और मैं तो ये बोलता हूँ कि मान लीजिए आज बीजेपी की सरकार ना रहे, कांग्रेस की सरकार आ गए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो भी यही करेंगे, वो भी यही करेंगे विरोधी पक्ष के खिलाफ. अभी जो जितना चिल्ला रहे हैं ना, जैसे अभी आपने खुद ने एग्जांपल दिया, व्हाट डज दैट फेलो, व्हाट्स हिज नेम, शिव थरूर, व्हाट इज शिव थरूर, क्या शशि थरूर, शिव थरूर, शिव अरूर जो पहले आज तक में हुआ करता है, इंडिया टुडे में थे, वेरी गुड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, ही जॉइंड एनडीटीवी आई थिंक. व्हाट इज ही सेड अबाउट राहुल गांधी? क्या बोला, क्या उसने मजाक उड़ाया ना उसका, बस और क्या किया है, और आपने उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया. और आप वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं. अरे इतना भी दम नहीं है आप में, आप भूल गए नेहरू जी को. सर, देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड शंकर्स वीकली. शंकर यूज्ड टू मेक अ कार्टून ऑफ नेहरू एवरी वीक. हर हफ्ते वो नेहरू जी का मजाक उड़ाया करते थे. एक बार क्या हुआ कि शंकर्स वीकली आई नहीं. पंडित जी ने कहा वो कहाँ है, हर फ्राइडे को आती थी, कहाँ है? कहता नहीं शंकर की तबीयत खराब है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया. यू नो, पंडित जी वेंट टू हिज हाउस and he asked him, do you need anything? How dare you fall ill? He says, my week is not complete till such time as I see the joke you are cracking on me. So sir, they should remember their own glorious tradition. So how can they be so petty? I still don't understand. I hope Rahul Gandhi is not part of this. I hope this is some wet dream of some local guy. You know, कि इसके खिलाफ केस कर दो, उसके खिलाफ केस कर दो. But this is not done. Absolutely not done. As far as Rahul Gandhi is concerned, I mean, some people will find it funny, whatever you do. Some people will find it very good, and some people will find it terrible. That's what the public is. जैसे हम लोग भी हैं प्रदीप जी, मेरा और आपका जब लोग मजाक उड़ाते हैं इतने, मतलब वो आप तो इतने बड़े नेता हो साहब, इंटरनेशनल नेता हो, हमें कौन जानता है. लेकिन जब हमारा मजाक उड़ सकता है तो आप तो साहब माशाल्लाह, यू आर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, तो लिहाजा आपका तो मजाक उड़ेगा ही उड़ेगा ना. In any event, that's just about it. That's all we've got for you in tonight's show. आप जरा कमेंट जरूर भेजें अपने, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. Do subscribe to the channel. And it is a very very good show today. I think. आज आपने अपना वो तकिया का नाम बोला नहीं, fastest growing channel of the nation. I'm going to just after you finish. Yes, subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Always with you, always on your side, on the side of the truth. That's it. And when we don't know the truth, we always tell you, कि यार मालूम नहीं है. That's the tagline that you're given, the real people's channel. That's the real people's channel. That's your tagline. That's it. It is the real people's channel in the sense that अगर हमें सच मालूम है तो सच्चाई आपके सामने बयान कर देते हैं, और अगर नहीं मालूम है तो आपको बोलते हैं कि भैया हम जानकारी लेकर के आपको बता देंगे. सीधी बात है. जिस चीज के बारे में मालूम नहीं है भाई, हर एक कोई हरफत मौला नहीं हो सकता. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सबको एक बार फिर शनि अमावस की, और इस साल की आखिरी शनि अमावस है, उसकी बहुत 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 शुभकामनाएं. शनि महाराज की नज़र दृष्टि जो है आप लोगों पर सीधी रहे, और ना ही पड़े आप लोगों पर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दृष्टि जिन पे पड़ती है उनकी ऐसी तैसी हो जाती है. तो ये तो कहा जाता है, कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था शनि को बोला गया था तू आसपास नहीं आएगा, देखेगा नहीं. तो आप सब लोगों को एक बार फिर प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. जय हिंद. जय हिंद.